welcome to all of you. Again, I am coming back to my channel, Asit Government Rule Guru. Today, I will discuss GST reforms 2025. So, in this part, I will discuss 60 MCQs. You know that this year, September 4, 2025, uh, one big changes actually brought by the government in GST. So already one theory part already I have uploaded, but today I will discuss 60 very interesting MCQs and in latest pattern of questions. You know, alternate name of GST, it is GST 2.0 with next generation reforms. It is useful for all central and state government exams. So generally you must know and you must aware about the GST reforms 2025. So my friends, please subscribe my channel, share my channel, like my channel, so that you can get notification for upcoming videos. My YouTube channel is Asit Government Rule Guru. Let's compete. So please, my friends, subscribe my channel. So definitely in subsequent time you will get some interesting videos on different topics. So you see, join my WhatsApp number. It is 8327782034. If any queries there, you can contact with me and clear your doubt. Also, my first Telegram channel, link t.me/bapi2034. You can join it. And second Telegram channel, link t.me/asit2034. So both Telegram channel you join it so that you can get a notification and update about my videos. So now I am going to discuss 60 MCQs related to the GST reforms 2025. Here you see question number 1. It is given the most significant feature of the GST system that avoids tax on tax effect. It is cascading of taxes, right? Is the concept of a one nation one tax system, the use of a destination based tax model, the provision for input tax credit, the charging of GST at every stage from manufacturer to consumer. Tax on tax effect, actually cascading of taxes, actually it is removed by the GST system, and due to option C is the correct answer, the provision for input tax credit. Okay, through ITC, input tax credit, tax on tax effect, alternate name, it is cascading of taxes, that thing actually removed. Okay, single single tax system, it is already implemented. So option C is the correct answer, but I want to discuss about the input tax credit. You see, one example I want to give how to avoid tax on tax effect. Suppose you see, as a producer, suppose first you purchase, when you purchase raw materials, so you paid input tax. When you purchase raw materials, then definitely you purchase inputs, means actually those type of raw materials the producer must be used to produce the final commodity. Suppose you as a producer pay input tax, suppose rupees 300. Clear? When you purchase the raw material, then you pay GST rupees 300 in my imaginary example. Then when you sell your output, then you collect output tax. Suppose you collect 450 rupees. Okay, so when you purchase the raw material, you pay GST rupees 300 in my imaginary example. And when you sell your commodity, then at that time the producer collect output tax. Okay, collect GST rupees 450. So out of 450, so how much GST already you paid at the time of raw material? Okay, the producer keep it. Okay, it must be credited. Rupees 300 must be credited to the account of the producer, because it's the input tax, na. So how much tax the producer paid at the time of purchasing raw materials, it must be credited. Okay, so now you how much GST you pay to the government? It is 150. Okay, so at the time of purchasing raw material, how much GST paid by the producer, it must be credited to his account. Okay, so minus it, output tax minus input tax, how much it must be paid to the government. So there is no tax on tax system.
it is avoided, it is already removed. Clear? So this example just it means in my previous video already I had discussed, okay, about the input tax. Now also I discussed. I think that you have cleared about the input tax credit. So due to this provision only, tax on tax effect by cascading of taxes removed. Okay, the question number 1, option C is the correct answer. You see question number 2. Question number 2, it is, you see question number 2, right? If a sale of goods occurs from a supplier in Kerala to a final consumer in Tamil Nadu, to which state will the tax revenue from the transaction ultimately accrue? Based on the destination based principle of GST. You know that when good move from one state to another, it is IGST, integrated GST, IGST, when the goods move from one state to another. Okay, so IGST actually basically collect by the central government. It is collect by the central government. Okay, acha, here question is asking, it is a destination based tax. Acha, supplier in Kerala to a consumer in Tamil Nadu. Actually, good produced in Kerala, but Tamil Nadu consumer, okay, purchased it. Produced in Kerala, but ultimate destination is Tamil Nadu. So consumer of the Tamil Nadu, okay, consumed the product. सो इसमें डेस्टिनेशन हम क्यों बोलते हैं कि जिस स्टेट में कंज्यूमर प्रोडक्ट को कंज्यूम किया, प्रोडक्ट को परचेज किया, उसी स्टेट को टैक्स जाएगा. जिस स्टेट कमोडिटी को प्रोड्यूस किया उस स्टेट को टैक्स नहीं जाएगा. तो यहां पर है तमिलनाडु में कंज्यूमर परचेज किया, ओके, तमिलनाडु में कंज्यूमर परचेज किया, मगर एक्चुअली प्रोडक्ट कहां पर प्रोड्यूस हुआ? केरला में. मगर डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स में जिस स्टेट में द कंज्यूमर कमोडिटी को कंज्यूम करेगा उसी स्टेट को आईजीएसटी का एक शेयर जाएगा. वन स्टेट टू अनदर आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी, ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगा, मगर अल्टीमेटली इसका एक शेयर, ठीक है, किस स्टेट को जाएगा ना? जिस स्टेट में कंज्यूमर कमोडिटी को कंज्यूम करेगा. प्रोड्यूसर स्टेट को नहीं जाएगा, कंजप्शन स्टेट को जाएगा. तो यहां पर कंजप्शन स्टेट कौन है? कंजप्शन स्टेट है तमिलनाडु. ठीक है, तो यहां पर देखिए बोथ केरला एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट, केरला स्टेट ऑफ ओरिजिन, तमिलनाडु स्टेट ऑफ कंजप्शन. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. तो डेस्टिनेशन बेस्ड प्रिंसिपल ऑफ जीएसटी में जिस स्टेट में कंज्यूमर कंज्यूम करेगा उसी को ही आईजीएसटी का एक शेयर जाएगा. और आपको मैं क्लियर बोल दिया कि एक स्टेट, वन स्टेट टू अनदर स्टेट, व्हेन द good actually transfer, then IGST must be imposed, integrated GST must be imposed, and it must be collected by central government, and part of the share, okay, part of the share of IGST gone to the state where the consumer consume the product, right? Option C is the correct answer. So question number 3, a transaction where goods are sold from a dealer in Punjab to a consumer in Haryana will have which type of GST levied on the invoice? अच्छा, ये goods are sold from a dealer in Punjab to a consumer in Haryana. Actually good produced in Punjab, but consumer of Haryana, okay, purchased it and consume it. Okay, so यहाँ पर वो दिया है कि विल हैव व्हिच टाइप ऑफ जीएसटी. इसमें जीएसटी तो आईजीएसटी है, एक सिंगल इनवॉइस होगा. आईजीएसटी कौन कलेक्ट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट. इसका एक पार्ट, आईजीएसटी का एक पार्ट किसको जाएगा? हरियाणा को जाएगा, क्योंकि हरियाणा में अल्टीमेटली कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है कमोडिटी को, इसलिए तो जीएसटी को डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स कहा जाता है. तो इसमें जो इनवॉइस होगा ओनली किसका इनवॉइस होगा? ओनली आईजीएसटी, ओनली इनवॉइस होगा आईजीएसटी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगा, मगर अल्टीमेटली इसका एक पार्ट हरियाणा को जाएगा, क्योंकि हरियाणा में एक्चुअली कंज्यूमर कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा है, मगर एक्चुअली जो डीलर है वो पंजाब का है. इट मींस पंजाब का डीलर है, मगर हरियाणा में कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है. तो ऑब्वियसली इन व्हिच स्टेट एक्चुअली द कंज्यूमर कंज्यूम द प्रोडक्ट,
पार्ट ऑफ द आईजीएसटी मस्ट हैव गॉन टू दैट स्टेट। तो यहां पर जो ऑप्शन है, जो इनवॉइस होगा, एक ही इनवॉइस होगा, ओनली आईजीएसटी। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में व्हेन ए प्रोडक्ट इज सोल्ड विद इन द स्टेट ऑफ गुजरात, इंट्रा स्टेट सेल at a total GST rate of 12%. How is the tax amount typically divided and who collects the respective shares? आप जानते हो कि इंट्रा स्टेट में सेम विद इन द सेम स्टेट, ओके, सो विद इन द सेम स्टेट वो 50-50 डिवाइड हो जाएगा। सीजीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी सेंट्रल जीएसटी एंड प्लस एसजीएसटी स्टेट जीएसटी। सो इसमें 12% टोटल जीएसटी रेट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट को 6% जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट को 6% जाएगा। ठीक है, यही आंसर होगा। सो ऑप्शन देखिए, 6% जीएसटी कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 6% एसजीएसटी कलेक्टेड बाय द गुजरात स्टेट गवर्नमेंट, तो वही होगा। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन देखिए, तो 12% IGST collected and distributed by the central government, no, wrong होगा। 6% CGST collected by the central government and 6% SGST collected by the Gujarat state government. Third option is 6% CGST collected by the central government and 66% UTGST, Union Territory. No, option B is the correct answer. Option B। तो इसका 12 इंट्रा स्टेट में जीएसटी रेट 12% है, मीन्स ये डिवाइड हो जाएगा। 6% जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, 6% जाएगा गुजरात स्टेट गवर्नमेंट को। तो ये सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा और ये गुजरात एसजीएसटी में गुजरात गवर्नमेंट को जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन यहां पर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, in which of the following scenarios is UTGST, Union Territory GST, applied instead of SGST, State Goods and Services Tax? A sale from Delhi to Maharashtra, a sale within the Union Territory of Puducherry, a sale within the Union Territory of Ladakh, a sale imported into India। आप देखिए, दो टेरिटोरी को याद रखिए, एक है पुडुचेरी और एक है दिल्ली। इनका लेजिस्लेचर है, दोनों का लेजिस्लेचर है, स्टेट लेजिस्लेचर। सो यहां पर क्लियरली मेंशन है, जो यूटीजीएसटी जहां पर जो यूनियन टेरिटोरीज है, ये दिल्ली और पुडुचेरी भी यूनियन टेरिटोरीज है, मगर उसमें लेजिस्लेचर है। जहां पर लेजिस्लेचर नहीं है वहां पर लेंगे, यहां पर वही लगेगा जैसे सीजीएसटी एसजीएसटी। जो जीएसटी लगेगा वो 50-50 होगा, सीजीएसटी एसजीएसटी, क्योंकि दोनों में स्टेट लेजिस्लेचर है। मगर अदर में जैसे अंडमान निकोबार है, ठीक है, डामन ड्यू है, तो अदर केस में आपका यूटीजीएसटी, अदर केस में यूटीजीएसटी और सीजीएसटी लगेगा, मगर दिल्ली और पुडुचेरी में नहीं लगेगा, क्योंकि ये दोनों में स्टेट लेजिस्लेचर है। ठीक है, मेरा वीडियो देखिए, मैं वहां पर क्लियरली मेंशन किया था, जहां पर स्टेट लेजिस्लेचर नहीं है तो वहां पर बेसिकली यूटीजीएसटी लगेगा। मगर जहां ये दोनों टेरिटोरी में, पुडुचेरी न्यू दिल्ली में लेजिस्लेचर है, तो इसके लिए इसमें क्लियरली मेंशन कर दीजिए। दिल्ली टू महाराष्ट्र तो नहीं होगा क्योंकि आईजीएसटी होगा। ये सेल विद इन द यूनियन टेरिटोरी ऑफ पुडुचेरी नहीं होगा क्योंकि पुडुचेरी में लेजिस्लेचर है। ये सेल विद इन द यूनियन टेरिटोरी ऑफ लद्दाख, यही करेक्ट होगा, लद्दाख। ये सेल इंपोर्टेड इनटू इंडिया, इंपोर्टेड केस में आईजीएसटी लगेगा, इसमें आईजीएसटी लगेगा। इंपोर्टेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आईजीएसटी लगता है। दिल्ली टू महाराष्ट्र चेंज हो गया स्टेट ना, आईजीएसटी लगेगा, मगर इसमें पुडुचेरी में नहीं लगेगा क्योंकि पुडुचेरी में लेजिस्लेचर है। मैं बोला दिल्ली और पुडुचेरी, तो अदर जो है लद्दाख दिया है, अदर यूनियन टेरिटोरीज में लेजिस्लेचर नहीं है, तो वहां पर यूटीजीएसटी एंड सीजीएसटी लगेगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, यहां पर करेक्ट स्टेटमेंट को देखेंगे, मैं इसको अंडरलाइन कर दिया। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जीएसटी। 3 स्टेटमेंट्स गिवन, करेक्ट स्टेटमेंट को हम डिटेक्ट करेंगे। जीएसटी कंबाइंस मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस इनटू वन सिंगल टैक्स, ये करेक्ट है, क्योंकि पहले वैल्यू एडेड टैक्स था, एक्साइज टैक्स था, कस्टम ड्यूटी था, सर्विस टैक्स था। सो डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस एक्चुअली imposed by the government in different stages, टैक्स ऑन टैक्स सिस्टम था।
मगर अभी सभी जो टैक्सेस को कंबाइन करके एक सिंगल टैक्स हो गया, सिंगल नेशन सिंगल टैक्स, देयर इज नो टैक्स ऑन टैक्स सिस्टम। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। जीएसटी इज लेविड ओनली एट द फाइनल स्टेज ऑफ कंजप्शन, ये नहीं है डिफरेंट स्टेजेस में लगता है, तो ये गलत है। जीएसटी प्रिवेंट्स cascading of taxes, cascading of taxes means tax on tax through input tax credit, absolutely correct है। which of the above statements are correct, ये फर्स्ट एंड थर्ड है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि डिफरेंट स्टेजेस में लगता है, फाइनल स्टेज में नहीं, डिफरेंट स्टेजेस में लगता है। अच्छा, मैं इसको थोड़ा क्लैरिफाई कर देता हूं, क्योंकि स्टेटमेंट 2 क्यों गलत है, एट द फाइनल स्टेज ऑफ कंजप्शन, ऐसा नहीं, डिफरेंट स्टेजेस में लगता है, मगर इनपुट टैक्स क्रेडिट के वजह से टैक्स ऑन टैक्स को हम अवॉइड करते हैं। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, जैसे एक सपोज एम जो है मैन्युफैक्चरर, ओके, मैन्युफैक्चरर से आ गया डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर से आ गया रिटेलर, रिटेलर से आ गया कंज्यूमर, यही है ना। ठीक है, मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे सपोज मैन्युफैक्चरर केस में सपोज ये इनपुट टैक्स दे दिया। ठीक है, सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूं, इनपुट टैक्स दे दिया, सपोज फॉर एग्जांपल ₹200 इनपुट टैक्स दे। इनपुट मीन जब रॉ मटेरियल्स परचेज किया वो इतना जीएसटी पेड किया, फिर मैन्युफैक्चरर किसको बेचा, डिस्ट्रीब्यूटर को। सो जब डिस्ट्रीब्यूटर को बेचा वो क्या कलेक्ट करेगा, आउटपुट टैक्स। सपोज आउटपुट टैक्स वो कलेक्ट किया 300, वो मैन्युफैक्चरर बेचेगा किसको, डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर को, ऐसे चलेगा। तो ये मैं जो डिस्कस कर रहा हूं मैन्युफैक्चरर के लिए, जब रॉ मटेरियल्स परचेज किया सो ही पेड ₹200 as a GST. So when manufacturer sold output to distributor, then the manufacturer collected output tax ₹300. तो उसमें क्या होगा, वो जो आउटपुट टैक्स है 200 वो खुद के पास रखेगा, क्योंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये इनपुट टैक्स है, ये जो इनपुट टैक्स है वो क्रेडिट हो जाएगा, ओके, मैन्युफैक्चरर का अकाउंट में। तो वो एक्चुअली गवर्नमेंट को कितना जीएसटी पेड करेगा, वो ₹100 पेड करेगा। ऐसे डिफरेंस, वैसे डिस्ट्रीब्यूटर टू रिटेलर, रिटेलर टू कंज्यूमर, फाइनली कंज्यूमर तो पूरा जीएसटी पे करता है, मगर अदर में मैन्युफैक्चरर टू डिस्ट्रीब्यूटर, तो ये जो मैन्युफैक्चरर का इनपुट टैक्स को वो ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर का इनपुट टैक्स क्रेडिट हो जाएगा, मैं जैसे बताया। तो यहां पर जो मैन्युफैक्चरर जो ₹300 कलेक्ट किया उससे वो 200 खुद के पास रख देगा और ₹100 पे करेगा, क्योंकि इनपुट टैक्स ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंट स्टेजेस में जीएसटी लगता है, मगर टैक्स ऑन टैक्स को अवॉइड हम करते हैं थ्रू इनपुट टैक्स क्रेडिट प्रोविजन। ठीक है, तो यहां पर आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट गलत है, तो इसमें ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये आजकल का लेटेस्ट पैटर्न क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 को चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट जीएसटी एज ए टैक्स सिस्टम। इनकरेक्ट स्टेटमेंट को हम डिटेक्ट करेंगे। 3 स्टेटमेंट्स गिवन। जीएसटी फॉलोज द डेस्टिनेशन बेस्ड प्रिंसिपल, ये करेक्ट है। अंडर जीएसटी टैक्स रेवेन्यू गोज टू द स्टेट वेयर गुड्स आर प्रोड्यूस्ड, नो ये रॉन्ग है, वेयर गुड्स आर कंज्यूम्ड। जिस स्टेट में गुड कंज्यूम होता है वही स्टेट को एक्चुअली टैक्स जाता है। ठीक है, तो जैसे आईजीएसटी केस में माने वन स्टेट टू अनदर जब गुड ट्रांसफर होता है, ओके, आईजीएसटी लगता है, मगर उसका एक शेयर, आईजीएसटी का एक पार्ट किस स्टेट को जाएगा ना, जिस स्टेट में पर्टिकुलर कमोडिटी को कंज्यूमर कंज्यूम करेगा। तो ये गलत है सेकंड स्टेटमेंट। जीएसटी अप्लाइज फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग, होलसेलर, रिटेलर, फाइनल कस्टमर, ये है। ठीक है, करेक्ट है, सभी स्टेजेस में जीएसटी लगता है, मगर जो इनपुट टैक्स जो है वो क्रेडिट हो जाता है। मैं अभी एक एग्जांपल भी बताया था। तो इसमें जो इनकरेक्ट है ओनली स्टेटमेंट 2 है, क्योंकि वहां पर वेयर गुड्स आर कंज्यूम्ड होना चाहिए, यहां पर गुड्स कंज्यूम्ड होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इट इज इन स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट वन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 को चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, which of the following statements regarding the structure and operation of the goods and services tax in India is are correct statement को देखेंगे। करेक्ट स्टेटमेंट में इसको अंडरलाइन कर दिया। 3 स्टेटमेंट्स गिवन, 4 स्टेटमेंट्स गिवन। ठीक है, जीएसटी इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स सिस्टम मीनिंग द टैक्स रेवेन्यू इज रिसीव्ड बाय द स्टेट वेयर द गुड्स और सर्विसेज आर फाइनली कंज्यूम्ड, नॉट वेयर दे आर प्रोड्यूस्ड, ये ठीक है।
जिस स्टेट में गुड कंज्यूम होगा उसी स्टेट को शेयर जाएगा, इसलिए तो उसको डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स कहा जाता है। ठीक है, इनपुट टैक्स क्रेडिट इज द मैकेनिज्म अंडर जीएसटी दैट प्रिवेंट्स द कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस व्हिच वाज कॉमन इन द अर्लियर सिस्टम। ठीक है, कास्केडिंग इफेक्ट मींस मैं बोला था टैक्स ऑन टैक्स सिस्टम, वो आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो भी प्रोड्यूसर जब रॉ मटेरियल्स खरीदता है जो जीएसटी पे करता है वो ऑटोमेटिकली वो क्रेडिट हो जाएगा। जब वो आउटपुट टैक्स कलेक्ट करेगा तो उससे वो जितना वो इनपुट रॉ मटेरियल्स खरीदने के समय जीएसटी पे किया था उतना उसको मिल जाएगा। तो सभी समय देखिए आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स जितना होगा उतना गवर्नमेंट को जाएगा, क्योंकि इनपुट टैक्स को ऑटोमेटिकली प्रोड्यूसर को क्रेडिट हो जाएगा जब वो आउटपुट टैक्स कलेक्ट करेगा। इसको मैं बोल चुका हूं। थर्ड स्टेटमेंट, व्हेन अन इंट्रास्टेट विद इन द सेम स्टेट सेल टेक्स प्लेस द टैक्स चार्ज्ड ऑन द इनवॉइस इज ऑलवेज आईजीएसटी। नो, इसमें आईजीएसटी नहीं, आईजीएसटी ये गलत है। आईजीएसटी कब होता है? जब स्टेट टू स्टेट, व्हेन द गुड्स एंड सर्विसेज मूविंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। तो ये इंट्रा स्टेट बोला है ना, आईजीएसटी नहीं लगेगा वहां पर, बहुत सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट गलत है। यूटीजीएसटी यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज अप्लाइड इन ऑल यूनियन टेरिटरीज इंक्लूडिंग दोज विद देयर ओन लेजिस्लेचर लाइक दिल्ली एंड पुडुचेरी। ये गलत है, क्योंकि इसमें दिल्ली एंड पुडुचेरी में यूटीजीएसटी नहीं लगता है, क्योंकि वहां पर ओन लेजिस्लेचर है। ये दोनों यूनियन टेरिटरी में ओन लेजिस्लेचर है, तो इसमें यूटीजीएसटी नहीं लगेगा। वही स्टेट जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी लगेगा। ठीक है, अदर जो टेरिटरीज है एक्सेप्ट दिल्ली एंड पुडुचेरी वहां पर यूटीजीएसटी और सीजीएसटी लगेगा। तो इसमें आपको आंसर मिल गया। तो ऑप्शन करेक्ट पूछा है 1 and 2, तो अगेन ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 करेक्ट स्टेटमेंट को डिटेक्ट करेंगे। आईजीएसटी इज अप्लाइड ऑन इंटरस्टेट सप्लाई। ठीक है, इंटरस्टेट व्हेन द गुड्स मूविंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, आईजीएसटी कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इज, आईजीएसटी इज नॉट अप्लीकेबल ऑन इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। नहीं, ये गलत है। आईजीएसटी इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स, जो गुड्स एक्चुअली इंपोर्ट टू इंडिया और गुड्स एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, इसमें आईजीएसटी लगेगा। आप याद रखिए, स्टेट टू स्टेट, कंट्री टू फॉरेन कंट्री, फॉरेन कंट्री टू कंट्री, कंट्री टू फॉरेन कंट्री एक्सपोर्ट है, फॉरेन कंट्री टू इंडिया इंपोर्ट है, तो आईजीएसटी लगेगा। तो इंटरस्टेट एक्सपोर्ट इंपोर्ट आईजीएसटी लगेगा। आईजीएसटी कलेक्ट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, और इसमें जब स्टेट टू स्टेट होगा तो आईजीएसटी तो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगा, मगर जिस स्टेट में गुड कंज्यूम होगा उसी स्टेट को आईजीएसटी का एक शेयर जाएगा। तो उसमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है मीन्स थर्ड स्टेटमेंट ओनली गलत है, तो 1 and 2। ठीक है, 1 and 2 ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, 4 स्टेटमेंट्स गिवन, राइट। हम चेक करेंगे, यहां पर ऑप्शंस दिया है। अच्छा, आईजीएसटी इज अप्लाइड ऑन इंपोर्ट्स इनटू इंडिया एंड एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया and it is collected solely by the respective state government. It is collected by the central government, not state government. जैसे हमारा जो imports होता है, ओके, गुड्स कमिंग टू इंडिया फ्रॉम अब्रोड, और एक्सपोर्ट क्या है? इंडियन गुड्स सेलिंग इन द फॉरेन मार्केट। नहीं कि इसमें एक्चुअली जो आईजीएसटी कलेक्ट होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, नॉट स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, ये गलत है। इन ए सेल फ्रॉम मुंबई महाराष्ट्र to Pune, Maharashtra, तो विद इन इंट्रास्टेट, तो टोटल जीएसटी इज स्प्लिट इनटू सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। ठीक है, इंट्रास्टेट है, पुणे एंड मुंबई बोथ आर इन महाराष्ट्र, तो इंट्रास्टेट में जो भी जीएसटी रेट है उसका 50% जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट को, 50% महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी / यूटीजीएसटी आर अप्लाइड ऑन द सेम इनवॉइस बट आर कलेक्टेड बाय 2 different गवर्नमेंट्स। एस इनवॉइस सेम है but collected by 2 different governments, center and state or UT। ठीक है, करेक्ट है। फोर्थ वन, the central government collects the IGST revenue first and later distributes the state share of that tax to the destination state। ये करेक्ट है। IGST क्या है? जैसे यहां पर बोलता हूं महाराष्ट्र में प्रोड्यूस हुआ, और वो चला गया
सपोज आसाम चला गया, ओके, आसाम में कंज्यूमर कंज्यूम किया, तो ये तो आईजीएसटी हो गया, क्योंकि एक्चुअली गुड्स मूव फ्रॉम महाराष्ट्र टू आसाम, मगर आसाम में फाइनली कंज्यूमर्स ने कंज्यूम किया, तो जो ये तो आईजीएसटी लगेगा, ओके, इसको तो कलेक्ट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, मगर उसका एक पार्ट किसको जाएगा, आसाम को जाएगा, क्योंकि आसाम फाइनल डेस्टिनेशन है, ठीक है। तो इसमें ओनली स्टेटमेंट वन जो है इनकरेक्ट है, अदर स्टेटमेंट्स आर करेक्ट वन, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आप देखिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ओके, ओनली यही गलत है, ये स्टेट गवर्नमेंट नहीं हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट, अदर सब करेक्ट है, ठीक है, क्लियर, अदर सब करेक्ट है, तो 2, 3 एंड 4 आर करेक्ट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 11 को चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, which of the following statements is incorrect regarding the new GST rate rationalization? The new main GST slabs are 5% merit, 18% standard and 40% luxury or sign. ये करेक्ट है। 3 टाइप्स ऑफ मेरिट मीन्स बहुत एसेंशियल गुड्स जो है 5% है, स्टैंडर्ड मेजोरिटी गुड्स वो 18% स्लैब में आ गया, और लग्जरी साइन मीन्स क्या बोलते हैं, जैसे पान सिगरेट है, गुटखा है, पान मसला है, लग्जूरियस कार है, जो बाइक है 350 सीसी से ज्यादा है, ग्रेटर देन 350 सीसी, एराटेड ड्रिंक्स है जैसे कोल्ड ड्रिंक्स है, ठीक है, इसके ऊपर जो कैसीनोज है, ठीक है, और आप जो ऑनलाइन गेम्स है इसमें सब 40% है, क्योंकि वो डिमेरिट गुड्स है। सो 3 स्लैब में, मेरा वीडियो फर्स्ट थ्योरी पार्ट को देख लीजिए, अभी मैं अपलोड किया, तो आपको क्लियर हो जाएगा। सो 3 जीएसटी स्लैब है, 5% मेरिट बहुत एसेंशियल गुड्स के ऊपर लगता है, स्टैंडर्ड मैक्सिमम गुड्स के ऊपर अभी 18% है, और मैं बताया लग्जरी और साइन गुड्स, लग्जरी और साइन में पान मसला, गुटखा, सिगरेट, जितना इंटॉक्सिकेंट प्रोडक्ट आ जाता है, ऑनलाइन गेम आ जाएगा, कि हॉर्स रेस आ जाएगा, कैसीनोज आ जाएगा, जितना प्रकार का गैम्बलिंग इसमें आ जाएगा, एराटेड कोल्ड ड्रिंक्स आ जाएगा, ठीक है, तो ये सब आ जाएगा 40%, तो ये करेक्ट है। इंडिविजुअल लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज आर नाउ एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, एब्सोल्युटली करेक्ट। अभी जो इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस कर रहे हो, जो हेल्थ इंश्योरेंस कर रहे हो, उसमें जीएसटी रेट नहीं है, ये एक बड़ा चेंज थे। अर्लियर सिस्टम में जीएसटी लगता था, आप एक एग्जांपल देखिए, पीएलआई पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस जीएसटी लगता था, मगर अभी नहीं लगेगा। पहले हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर लगता था, मगर अभी नहीं लगेगा, ठीक है। एसेंशियल गुड्स लाइक हेयर ऑयल, सोप्स एंड शैम्पूज have moved from higher rates to standard, नहीं ये सब 5% हो गया, ये गलत है, ये सभी में अभी जीएसटी रेट सब 5% हो गया, ठीक है। एसेंशियल गुड्स ना मेरिट इसमें आ गया, मेरिट में आ गया, ये सब मेरिट में आ गया, 5% में आ गया, तो ये गलत है, 18% स्लैब में आ गया वो बोल रहा है, नहीं। सीमेंट हैज सीन ए रेट रिडक्शन फ्रॉम 28 to 18, ये करेक्ट है। अभी पहले सीमेंट के ऊपर 28% लगता था, अभी 18% है, करेक्ट है। अभी कंस्ट्रक्शन सेक्टर को फायदा है, रियल एस्टेट सेक्टर को, ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अभी ग्रो करेगा, तो उसमें गलत है ऑप्शन सी, इनकरेक्ट पूछा है ना, ऑप्शन सी रॉन्ग है, इनकरेक्ट है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 को चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, द रैशनलाइजेशन शोज ए स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन रिड्यूसिंग हेल्थ केयर कॉस्ट, which of the following policy changes would have the greatest immediate positive financial impact on a person suffering from a chronic severe disease, suffering from a chronic severe disease? अभी तो हेल्थ केयर कॉस्ट रिड्यूस हो गया, तो ग्रेटेस्ट पॉजिटिव एक फाइनेंशियल इम्पैक्ट है। आपको देखा होगा अभी एक जीएसटी जो रिफॉर्म्स में क्लियरली मेंशन किया गया, जो 33 जो ड्रग्स है, लाइफ सेविंग ड्रग्स है, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। 33 लाइफ सेविंग ड्रग्स के ऊपर अभी नहीं लगेगा जीएसटी, ठीक है। और जो हेल्थ पॉलिसीज के ऊपर वो 0% हो गया, जितना हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज है, ठीक है। और जो हेल्थ डिवाइसेस है वो भी 5% है, जो भी मेडिकल डिवाइसेस, अभी हेल्थ डिवाइसेस, वो 5% अभी जीएसटी लगेगा। तो उसमें देख लीजिए, रिडक्शन इन द जीएसटी रेट फॉर ऑल मेडिकल डिवाइसेस और apparatus to 5%, रिडक्शन इन द जीएसटी रेट फॉर ऑल अदर ड्रग्स और मेडिसिन टू 5%, exemption 0% जीएसटी ऑन इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज,
एग्जेम्पशन 0% जीएसटी ऑन 33 लाइफ सेविंग ड्रग्स एंड 3 मोर फॉर रेयर और सीवियर डिजीज। ये आंसर करेक्ट होगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट चेंज, ये तो सब ठीक है, चारों ऑप्शन एक्चुअली चारों ऑप्शन में चेंजेस आया, ठीक है, मगर सबसे बोला है द ग्रेटेस्ट इमीडिएट पॉजिटिव फाइनेंशियल इंपैक्ट क्रॉनिक पूछा ना, क्रॉनिक सीवियर डिजीज में 33 लाइफ सेविंग ड्रग्स 0% हो गया और 3 मोर और फॉर रेयर और सीवियर डिजीजेस, ओके, इसमें भी 0% आ गया, यही ग्रेटेस्ट चेंज है, ऑप्शन डी। अदर 3 भी करेक्ट है मगर ऑप्शन डी करेक्ट है इस क्वेश्चन में, ठीक है, क्रॉनिक का बात आ गया ना, क्लियर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मेरा प्रीवियस वीडियो थ्योरी वीडियो देखिए रिफॉर्म्स के ऊपर, आप पूरा क्लियर, कोई भी एमसीक्यू आएगा आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, द न्यू स्ट्रक्चर abolishes the older 12% and 28% slabs and introduce a 40% साइन और लग्जरी रेट, इसको इंट्रोड्यूस किया, ये दोनों को क्या किया, 12% 28% को स्लैब को अबोलिश कर दिया। दिस डुअल स्ट्रेटेजी रिड्यूसिंग रेट्स ऑन एसेंशियल और मेरिट गुड्स एंड इंक्रीजिंग देम ऑन डिमेरिट और लग्जरी आइटम्स प्राइमरली सजेस्ट ए गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव। अच्छा, अभी वो क्या किया, बेसिकली साइन और लग्जरी, मैं अभी साइन और लग्जरी आइटम्स बताया था, जितना इंटॉक्सिकेंट गुड्स है, लग्जरी कार है, लग्जरी बाइक है, कैसीनोज है, हॉर्स ट्रेडिंग है, ऑनलाइन गेम्स है, और एराटेड जो कोल्ड ड्रिंक्स है, इसके ऊपर 40% लगेगा। तो इसका गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इंश्योर ए नेट इंक्रीज इन द ओवरऑल जीएसटी रेवेन्यू बाय ऑफसेटिंग रेट कॉर्ड्स विथ ए हायर टॉप स्लैब, promote consumption of essential and agri goods while simultaneously discouraging the consumption of demerit goods, simplify tax filing compliance by reducing the total number of items categorized under the 12% and 28% slabs, align the Indian GST system with international standards that typically feature only 3 major tax slabs। नहीं, ऑप्शन बी मेन ऑब्जेक्टिव है, ज्यादातर लोग जो एसेंशियल एग्री गुड्स को उसका कंजप्शन बढ़ेगा, मगर जो गुड्स एक्चुअली डिमेरिट गुड्स है, दोज गुड्स आर इंजुरियस फॉर हेल्थ और ड्यू टू एक्चुअली सम, जैसे हॉर्स ट्रेडिंग है कि कैसीनोज है कि ऑनलाइन गेमिंग है, इसमें लोगों का पैसा बर्बाद हो रहा है। और जैसे लग्जरी कार है, रिचेस्ट लोग ही खरीदेंगे, जैसे लग्जरी कार सपोज ग्रेटर देन 1500 सीसी, तो इस तो रिच लोग खरीदेंगे, उनके पास पैसा है, तो जितना इंटॉक्सिकेंट गुड्स है उससे अवॉइड करेंगे। अभी यंग लोग, मेजोरिटी यंग पीपल दे प्रीफर एक्चुअली डिमेरिट गुड्स लाइक इंटॉक्सिकेंट गुड्स, तो उसको वो अवॉइड करेंगे क्योंकि अभी वो 40% हो गया साइन और डिमेरिट गुड्स। तो मेन ऑब्जेक्टिव यही है, जो एसेंशियल और एग्रीकल्चरल गुड्स को ज्यादा वो कंज्यूम करेंगे और डिस्करेज किया जाएगा डिमेरिट गुड्स। कारण ज्यादातर एसेंशियल एग्री गुड्स के ऊपर जीएसटी स्लैब कितना हो गया जानते हो, 5% हो गया, मगर उसी केस में जो डिमेरिट गुड्स है उसके ऊपर 40% हो गया, उसका मेन ऑब्जेक्टिव है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 को चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज करेक्टली रिफ्लेक्ट्स एन आइटम दैट मूव टू द 0% exempt slab and an item that was moved into the new highest 40% slab। देखेंगे, इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी 0% एंड सीमेंट टू 40%, ये गलत है, सीमेंट अभी 18% है, ये सीमेंट अभी 18% हो गया, 28% पहले था, अभी रिफॉर्म में 18% हुआ। प्री पैकेज्ड लेबल्ड पनीर 0% है, लग्जरी कार्स, ये करेक्ट है, जो प्री पैकेज्ड लेबल पनीर 0% है, लग्जरी कार्स के ऊपर 40% हो गया, करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट वन, ट्रैक्टर्स टू 0%, ट्रैक्टर्स के ऊपर 5% है, ओके ओके, एंड एराटेड के ऊपर 40%, ये ट्रैक्टर्स के ऊपर अभी इसमें आरो मार्क करके कर दिया, ट्रैक्टर्स के ऊपर, एग्रीकल्चरल गुड्स के ऊपर, एग्रीकल्चरल जो इक्विपमेंट्स के ऊपर 5% हो गया, और बेवरेजेस एराटेड कार्बोनेटेड 40% है, तो ये भी गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर ट्रैक्टर्स 0% दिया है, जीएसटी 5% है। इंडियन ब्रेड्स 0% है एंड स्मॉल कार्स, ये तो करेक्ट है, ये करेक्ट है, मगर यहाँ पर 40% नहीं, ये स्मॉल कार्स के ऊपर 18% है, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। तो सेकेंड जो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। प्री पैकेज्ड लेबल्ड पनीर 0% है, लग्जरी कार्स जो है 40% है, ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, यहां पर भी 3 स्टेटमेंट्स गिवन, आप करेक्ट स्टेटमेंट को डिटेक्ट करेंगे, ठीक है।
करेक्ट स्टेटमेंट को डिटेक्ट करेंगे. ऑल ड्रग्स एंड मेडिसिन एक्सक्लूडिंग द स्पेसिफिकली एग्जेम्प्टेड लाइफ सेविंग ड्रग्स आर नाउ टैक्स्ड एट 5%. एब्सोल्युटली करेक्ट वन. जो मैं बोला था अभी 33 लाइफ सेविंग ड्रग्स एंड 3 सीवियर और क्रॉनिक डिजीज के यूपर 0% है. बाकी जो ड्रग्स एंड मेडिसिन के ऊपर अभी टैक्स स्लैब जो है जीएसटी स्लैब 5% है ओनली. ठीक है, ये करेक्ट है. यूएचटी मिल्क, प्री पैकेज्ड लेबल्ड पनीर एंड इंडियन ब्रेड्स लाइक रोटी पराठा आर नाउ जीएसटी एग्जेम्प्टेड है. करेक्ट है, इसके ऊपर सब जीएसटी एग्जेम्प्ट है. यूएचटी मिल्क, प्री पैकेज्ड लेबल्ड पनीर एंड इंडियन ब्रेड्स लाइक रोटी पराठा आर नाउ जीएसटी एग्जेम्प्ट. करेक्ट है. मेडिकल डिवाइसेस और apparatus, सर्जिकल, डेंटल, वेटरिनरी हैव बीन रिड्यूस्ड टू 0% जीएसटी. ये गलत है, ये 0% नहीं है, ये एक्चुअली 5% है. मेडिकल डिवाइसेस और apparatus के ऊपर 5% है, ये ओनली गलत है. तो अभी आपको करेक्ट स्टेटमेंट डिटेक्ट करना है 1 and 2. फर्स्ट 2 स्टेटमेंट्स, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. मेरा थ्योरी पार्ट देखिए मैं क्लियरली मेंशन किया. 1 hour 57 मिनट्स का एक जीएसटी रिफॉर्म्स के ऊपर अभी वीडियो में डाला था, उसको देख लीजिए. आपका कोई भी क्वेश्चन जीएसटी के ऊपर एमसीक्यू आएगा, आप अटेम्प्ट आराम से कर सकते हो. तो यहां पर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 16 को चलेंगे. क्वेश्चन नंबर 16 में यहां पर भी 3 स्टेटमेंट्स गिवन. करेक्ट स्टेटमेंट को डिटेक्ट करेंगे. विथ रेस्पेक्ट टू द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड 40% जीएसटी, मैं बोला था साइन और डिमेरिट गुड्स, बार बार बता चुका हूं. डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. मोटरसाइकिल्स विथ एन इंजन कैपेसिटी एक्सीडिंग 350 सीसी आर सब्जेक्ट टू द 40% जीएसटी रेट. करेक्ट है. जो बाइक्स आ रहा है, स्पोर्ट्स बाइक्स, उसका जो कैपेसिटी है, इंजन कैपेसिटी ग्रेटर देन 350 सीसी, तो वो लग्जरी में चला जाएगा और वहां पर साइन और डिमेरिट टैक्स जो है 40% लागू होगा. ठीक है. सर्विसेज रिलेटेड टू, आप याद रखिए, बाइक के ऊपर ग्रेटर देन 350 सीसी, ये लग्जरी में चला जाएगा, 40% लगेगा. इससे नीचे कितना लगेगा? 18%. इसका नीचे 18%, लेस देन 3500 सीसी. सर्विसेज रिलेटेड टू गैम्बलिंग, ये देखिए गैम्बलिंग, कैसीनोज, ऑनलाइन, मैं बार बार बता रहा हूं, ये 40% है. ठीक है. एराटेड और कार्बोनेटेड एंड कैफेनेटेड बेवरेजेस, ये भी 40% है. अलॉन्ग विथ याट्स, प्राइवेट एयरक्राफ्ट, ये सब 40% है. तो इसमें 3 स्टेटमेंट्स एक्चुअली करेक्ट है. तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 17 को चलेंगे. क्वेश्चन नंबर 17, यहां पर भी 3 स्टेटमेंट्स है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट, हम देखेंगे. रिगार्डिंग द रेट एडजस्टमेंट्स इन की सेक्टर्स. The GST rate for TVs, ACs and dishwashers has been reduced from 28% to 18%. करेक्ट है. टेलीविजन है, जो एलईडी आ रहा है, कि एयर कंडीशनर से जितना इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस मैक्सिमम 18% स्लैब में आ गया. ठीक है. ट्रैक्टर्स एंड अदर एग्रीकल्चरल मशीनरी नाउ अट्रैक्ट 5% जीएसटी रेट, डाउन फ्रॉम 12%. करेक्ट है. जितना एग्रीकल्चरल मशीनरी है, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स है, ये ट्रैक्टर से, उसमें 5% जीएसटी लगेगा. नाउ अट्रैक्टिव 5% जीएसटी रेट, पहले 12% था. ठीक है, ये करेक्ट है. स्मॉल कार्स, बसेस एंड ट्रक्स हैव ऑल सीन देयर जीएसटी रेट रिड्यूस्ड फ्रॉम 28 to 18%. स्मॉल कार्स, बसेस, ट्रक्स सभी में लगेगा 18%. कि मगर लग्जूरियस कार्स जो कैपेसिटी है ग्रेटर देन, ये है इंजन कैपेसिटी, ये लग्जरी में चला जाएगा और इसमें 40% लगेगा. मगर स्मॉल कार, ट्रक्स, बसेस, इसके ऊपर 18% लगेगा. तो उसमें ये जो दिया है, ये ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट वन, तीनों करेक्ट है. तो ऑप्शन अगेन, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, यहां पर करेक्ट दिया है ना, ऑप्शन 3 डी इज द करेक्ट आंसर. ओके, ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट वन. क्वेश्चन नंबर 18 को चलेंगे. यहां पर एक असर्शन रीजन दिया है. ओके, असर्शन रीजन दिया है, यहाँ इसको अंडरलाइन में कर दिया. देखिए यहाँ पर एक असर्शन है, यहाँ पर रीजन है. आप देखिए इस तरीके का क्वेश्चन आजकल आ रहा है. द इंट्रोडक्शन ऑफ ए 40% जीएसटी स्लैब फॉर आइटम्स लाइक टोबैको प्रोडक्ट्स एंड लग्जरी कार्स while simultaneously reducing the rate on cement from 28% to 18% reflects a clear governmental strategy to categorize and tax high-end consumer goods as demerit or sign items and reduce infrastructure cost. ठीक है, ये जो असर्शन है एब्सोल्युटली करेक्ट है. क्योंकि सीमेंट के ऊपर जीएसटी कम कर दिया, क्योंकि मेन गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है ग्रोथ ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर.
ओके, रिड्यूस इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट। और ये जो डिमेरिट गुड्स है, ये जो गुटखा बताया था, पान मसाला, सिगरेट, लिकर की, सपोज अदर ऑनलाइन गेम्स, जो भी डिमेरिट, जो लग्जूरियस कार, इसके ऊपर हाई, ये टैक्स हाई एंडेड कंज्यूमर गुड्स, कैसे उसको लोग अवॉइड करेंगे उस तरीका का गुड्स को। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट एब्सोल्युटली करेक्ट है। रीजन देखेंगे, द जीएसटी काउंसिल्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इन द रैशनलाइजेशन exercise was to shift items from the intermediate 12% and 28% slabs either towards the merit or standard rates, and to ring fence specific luxurious sign goods into a new higher revenue generating tax bracket. तो इसमें क्या होगा, A is the correct answer, both A and R true, assertion correct है, reason true है, and R is the correct explanation of A, क्योंकि मैक्सिमम ये जो है ना 12% 28% तो अभी अबोलिश कर दिया, तो ये दोनों को क्या क्या कन्वर्ट कर दिया, 5% मेरिट जो रेट है और जो स्टैंडर्ड रेट 18% है। ओके, और जो डिमेरिट साइन गुड्स था, पहले क्या था, ये जो डिमेरिट अर्लियर में बता देता हूं, ये जो गुड्स था लग्जूरियर साइन गुड्स के ऊपर अर्लियर सिस्टम में था 28%, उसके ऊपर सेस था, मगर अभी वो डायरेक्टली 40% कर दिया। तो इसमें ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, बोथ assertion and reason both are correct, and R is the correct explanation of A. Reason is the correct explanation of assertion. So option A is the correct answer. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, again another assertion reason question. GST on many life saving medicines has been reduced from 12% to 0%. The government aims to reduce healthcare expenses by making essential medicines more affordable. तो ये भी देखिए, लाइफ सेविंग ड्रग्स में बताया था 33 लाइफ सेविंग ड्रग्स के ऊपर 0% कर दिया, तो ये करेक्ट है। इसका मेन रीजन क्या है, ये जो कम कर दिया लाइफ सेविंग मेडिसिन, हेल्थ डिवाइसेस के ऊपर 5% कर दिया, अपैरेटस, हेल्थ अपैरेटस के 5% कर दिया, और लाइफ सेविंग मेडिसिन जो 33 लाइफ सेविंग मेडिसिन है उसके ऊपर 0% जीएसटी कर दिया। मेन एम है कि सभी लोग अफोर्ड कर पाएंगे भाई, तो बोथ आर करेक्ट वन, ऑप्शन ए एंड आर बोथ आर ट्रू, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, अंडर द न्यू जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन द प्राइमरी जीएसटी स्लैब्स, बहुत इजी है, 5%, 18%, 40% जो है वही होगा। ओके, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 5% मेरिट रेट है, 18% स्टैंडर्ड रेट है, और डिमेरिट और साइन गुड्स के ऊपर 40% है। यदि 0% इनिशियली देता ठीक होता। ठीक है, तो ऑप्शन यहां पर देखेंगे, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 आप देखिए, व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ एन इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। मैं बताया था कि आईडीएस, मेरा थ्योरी पार्ट देखिए, मैं एक आईडीएस के ऊपर बताया था। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या है ना, ये इनपुट टैक्स ग्रेटर देन आउटपुट टैक्स, इनपुट टैक्स ग्रेटर देन आउटपुट टैक्स। ठीक है, इनपुट टैक्स मीन जब प्रोड्यूसर रॉ मटेरियल परचेज किया उस समय जो टैक्स पे किया था वो इनपुट टैक्स है, और जब प्रोड्यूसर वो उसका फाइनल प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, जो जीएसटी कलेक्ट कर रहा है वो आउटपुट टैक्स है। तो इसमें आईडीएस क्या है, जब इनपुट टैक्स ग्रेटर देन आउटपुट टैक्स, ये आईडीएस है। ओके, जिसको बोलते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। उसको एक एग्जांपल दे देता हूं, आंसर आपको मिल जाएगा। देखिए, जब आप एक प्रोड्यूसर जब रॉ मटेरियल खरीदा, वो इनपुट टैक्स दिया था ₹200, मगर जब वो प्रोडक्ट को सेल किया तो सपोज आउटपुट टैक्स वो कलेक्ट किया ₹100। आप समझ रहे कि नहीं? तो इसमें ये है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। आप जानते हो कि जीएसटी में जो आप रॉ मटेरियल परचेज करने के समय जो जीएसटी आप पे कर रहे हो, तो वो क्रेडिट हो जाएगा प्रोड्यूसर को, मगर यहां पर कैसे क्रेडिट होगा? यहां पर तो इनपुट टैक्स आप ज्यादा दे दिए, आउटपुट टैक्स कम है, तो आप रिफंड मांगेंगे। यहां पर रिफंड आपको गवर्नमेंट करेगा, क्योंकि इससे हम पहले आउटपुट टैक्स में एडजस्ट कर रहे थे। जब आउटपुट टैक्स ज्यादा था, हम ऑटोमेटिकली उसको रख के बाकी जो है हम गवर्नमेंट को जीएसटी पे कर रहे थे, इसलिए तो टैक्स ऑन टैक्स सिस्टम को रिमूव कर रहे थे हम। मगर अभी उल्टा हो गया, इन्वर्टेड हो गया। तो इसमें आपको कितना रिफंड चाहिए?
ना आपको रिफंड अभी 100 रुपीज चाहिए, क्योंकि आप इनपुट टैक्स 200 दे दिया मगर आउटपुट टैक्स 100 है। तो इनपुट टैक्स तो आपका क्रेडिट होगा, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा मीन्स आपको फिर रिफंड कितना चाहिए? ये तो 100 आप आउटपुट टैक्स तो आप 100 रुपीज कलेक्ट किया, ये तो आपके खुद के पास रखा और एक 100 रुपीज आप कलेक्ट करोगे, ठीक है कि नहीं? तो रिफंड आपको इतना मिलेगा। तो ये प्रॉब्लम था अर्लियर सिस्टम में। तो अभी मगर वो चेंज कर दिया, ये सिस्टम को करेक्ट कर दिया, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को। कैसे करेक्ट किया ना? जहां पर आउटपुट टैक्स इज मोर देन इनपुट टैक्स, तब आप रिफंड आप गवर्नमेंट को अप्रोच नहीं करोगे, ठीक है? तो आप अभी मेरा इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर थ्योरी पार्ट में देखिए, मैं एग्जांपल के साथ, न्यूमेरिकल एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में बताया द टैक्स रेट ऑन द आउटपुट फाइनल प्रोडक्ट इज हायर देन द टैक्स रेट ऑन द इनपुट। नो, ये गलत है। द टैक्स रेट ऑन द इनपुट रॉ मटेरियल्स इज हायर देन द टैक्स रेट ऑन द आउटपुट, ये करेक्ट है। द टैक्स रेट फॉर इंटरस्टेट सेल्स इज लोअर देन फॉर इंटर, ये नहीं है, ये गलत है। टैक्स रेट इज सेम फॉर बोथ इनपुट्स एंड आउटपुट्स, ये गलत है। तो एक्चुअली ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है? ठीक है, और एक एग्जांपल देता हूं, जैसे इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को आईडीएस इसको कहा जाता है सिंबॉलिकली। इनपुट आप इनपुट टैक्स सपोज आप 300 पे किया, क्योंकि इसमें जीएसटी रेट ज्यादा था, मगर अभी जब आप बेचा आउटपुट टैक्स, एक एग्जांपल दे देता हूं, जैसे एक्सपोर्टर है, देखिए एक एक्सपोर्टर है, अभी एक्सपोर्ट के ऊपर 0% जीएसटी, एक्सपोर्टर है। तो एक्सपोर्टर जब रॉ मटेरियल्स खरीदा, इनपुट टैक्स वो ₹200 पेड किया, ओके, जीएसटी पे किया जब रॉ मटेरियल्स खरीदा। मगर जब आउटपुट टैक्स जब वो बेचा, एक्सपोर्ट के ऊपर जीएसटी रेट 0% है, याद रखिए जीएसटी जो है वो 0% है एक्सपोर्ट के ऊपर, तो आउटपुट टैक्स तो 0 है, तो इनपुट टैक्स तो क्रेडिट होगा ना, ये तो क्रेडिट होगा, ठीक है? क्रेडिट होगा कि नहीं? ये तो प्रोड्यूसर को क्रेडिट होगा, एक्सपोर्टर को क्रेडिट होगा, तो वो रिफंड के लिए अप्लाई करेगा, मगर वो गवर्नमेंट, अर्लियर सिस्टम में गवर्नमेंट उसको होल्ड करके रखता था, तो इसका क्या है, जो फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉब्लम होता था, ठीक है? ये सिस्टम था। क्योंकि एक एग्जांपल दिया, आउटपुट टैक्स जो आप कोई गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हो उसके ऊपर 0 जीएसटी है, मगर इनपुट टैक्स, अब रॉ मटेरियल जब खरीदे थे टैक्स जीएसटी दिया, मगर जब आप एक्सपोर्ट किया, फॉरेन मार्केट में बेचा, उसके ऊपर तो जीएसटी नहीं है, तो आउटपुट टैक्स 0 हो गया। इनपुट टैक्स तो क्रेडिट होगा, इनपुट टैक्स तो आपको मिल जाएगा, मगर यहां पर आप रिफंड के लिए अप्लाई करोगे, फिर गवर्नमेंट बहुत टाइम लेता था, इसके लिए आपका जो फर्दर इन्वेस्टमेंट है उसके लिए ऑब्स्टैकल्स था, ठीक है? तो इसको रेक्टिफाई किया न्यू जनरेशन रिफॉर्म में, ठीक है? चलो क्वेश्चन नंबर 22 को चलेंगे। Which key input materials for the fertilizer sector had their GST rate reduced from 18 to 5% to correct the IDS? तो जो IDS मीन्स इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, तो इसमें देखिए ऑप्शन सी, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड अमोनिया, ओके। ये जो जीएसटी रेट है ये फ्रॉम 18% टू 5% आ गया। कोल एंड नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल एंड फॉस्फोरिक रॉक, सीमेंट एंड स्टील, नहीं, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। पहले क्या था, जो फर्टिलाइजर सेक्टर में हार्ड देयर जीएसटी रेट रिड्यूस्ड फ्रॉम 18% टू 5% टू करेक्ट द आईडीएस, ठीक है? सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक एंड अमोनिया, ओके, इसको करके वो आईडीएस स्ट्रक्चर को करेक्ट किया। जैसे इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स से ज्यादा नहीं होगा, इनपुट टैक्स इनपुट अभी इसको 5% कर दिया, ये सब इनपुट है, ये इसके ऊपर 5% कर दिया, तो आउटपुट टैक्स तो ज्यादा, आउटपुट जब आप बेच रहे हो तब ज्यादा है, ओके। सपोज आउटपुट टैक्स ज्यादा होगा, आप जो बेचोगे वो ज्यादा होगा, मगर इनपुट टैक्स क्या कर दिया, 5%। ये पहले 18% था, आप समझ रहे हो कि नहीं? ये पहले 18% था, अभी 5% कर दिया, तो आउटपुट टैक्स ऑब्वियसली ज्यादा होगा, आउटपुट टैक्स ऑब्वियसली ज्यादा। सपोज अभी आउटपुट टैक्स 18% है, आप जब बेच रहे हो 18% है, ठीक है? तो आप ज्यादा, आउटपुट टैक्स ज्यादा है, इनपुट टैक्स है, तो इसमें क्या होगा, आपका आईडीएस करेक्ट हो गया। क्योंकि आप सपोज यहां पर एग्जांपल में आप इसी में सपोज आप इनपुट टैक्स में आप 300 रुपीज कलेक्ट किया, जब आप रॉ मटेरियल्स, ये जो सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड अमोनिया, ये सब आप इस टाइप ऑफ रॉ मटेरियल्स आप खरीदते थे, आप जीएसटी इतना पेड किया था,
मगर अभी जब प्रोडक्ट बेच रहे हो आउटपुट टैक्स 18% है, और सपोज मेरा एग्जांपल में अभी आप सपोज 500 कलेक्ट कर रहे हो आउटपुट टैक्स, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है। आप आपका 300 आप खुद के पास रख दो, क्रेडिट हो गया, 200 रुपीज गवर्नमेंट को पे करो। अभी आईडीएस जो है वो करेक्ट हो गया। पहले क्या था, उल्टा था, इनपुट टैक्स ग्रेटर देन आउटपुट टैक्स। ठीक है, तो यहां पर जो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 23 whether the following statements करेक्ट स्टेटमेंट हम डिटेक्ट करेंगे। an inverted duty structure exists when the GST rate on the output is lower than the GST rate on the input, करेक्ट है। the presence of an IDS generally leads to the accumulation of excess input tax credit for the business, ठीक है, तो करेक्ट है। जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर था जो अर्लियर सिस्टम में था, द प्रेजेंस ऑफ एन आईडीएस जनरली लीड्स टू द एक्युमुलेशन ऑफ एक्सेस इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर द बिजनेस। ये ठीक है, दोनों तो करेक्ट है, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट वन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसके ऊपर एग्जांपल देता हूं, आप देखिए, सपोज फॉर एग्जांपल देखो, इनपुट टैक्स, ठीक है, इनपुट टैक्स सपोज आप कलेक्ट किया, एक एग्जांपल देता हूं 200 रुपीज, मगर आउटपुट टैक्स आप कलेक्ट कर रहे हो ₹100। ये तो इन्वर्टेड हो गया, क्योंकि ये क्रेडिट होना चाहिए, इसको आप इससे एडजस्ट नहीं कर सकते क्योंकि आउटपुट टैक्स कम है, ठीक है कि नहीं। तो आपको कितना अभी गवर्नमेंट रिफंड करेगा, क्योंकि ये तो रिफंड, ये तो इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो इनपुट टैक्स है वो तो क्रेडिट हो जाएगा, मगर इससे हम एडजस्ट कर रहे थे, मगर अभी एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, ओनली तो 100 हम कलेक्ट कर रहे हैं। तो अभी क्या होगा, जो 100 आप रिफंड कितना, एक एक्सेस कितना हो गया, ₹100 एक्सेस हो गया, इतना अभी गवर्नमेंट रिफंड आपको करेगा। वही सेकंड स्टेटमेंट है, पूछा है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यही चीज था, मगर अभी वो रेक्टिफाई हो गया, ठीक है। उसका एग्जांपल मेरा थ्योरी पार्ट देखिए, आपको मिल जाएगा। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट वन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, इसमें 2 स्टेटमेंट्स गिवन, राइट, whether the following statements either are correct पूछा है, करेक्ट स्टेटमेंट को डिटेक्ट करेंगे। इसमें बिजनेस सफरिंग फ्रॉम आईडीएस एक्सपीरियंसेस इंप्रूव्ड कैश फ्लो बिकॉज इट रिसीव्स प्रॉम्प्ट लार्ज टैक्स रिफंड्स फ्रॉम द गवर्नमेंट, ओके। Second one, the primary goal of correcting the IDS is to ensure the output GST is greater than or equal to the input GST, thereby minimizing or eliminating the need for refunds। ये तो करेक्ट है। A business suffering from IDS experiences improved cash flow because it receives prompt large tax refunds from the government। तो ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि इसको तो रेक्टिफाई कर दिया ना, अभी ऐसे सिस्टम कर दिया जैसे आपका इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स दोनों समान हो जाए, नहीं तो आउटपुट टैक्स ग्रेटर देन इनपुट टैक्स, ऐसे कर दिया, ठीक है। तो यहां पर जो करेक्ट है ऑप्शन टू इज द करेक्ट आंसर। इधर आपका जो देखिए, इनपुट टैक्स जितना है आउटपुट टैक्स उतना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हो सकता है। नहीं तो और एक कर दिया, जैसे इनपुट टैक्स कम है आउटपुट टैक्स ज्यादा है, इसमें क्या है ना, इससे जो आउटपुट टैक्स है आप एडजस्ट कर सकते हो इसको, और 100 रुपीज आप पे करोगे गवर्नमेंट को जीएसटी, क्योंकि इनपुट टैक्स तो क्रेडिट हो जाएगा ना। तो अभी इस तरीके से आईडीएस को रेक्टिफाई किया, समझ रहे हो कि नहीं। तो यहां पर जो है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ओनली 2 इज करेक्ट वन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, यहां पर देखिए, मैन्युफैक्चरर बाइज इनपुट्स जीएसटी 5% फॉर 2000 रुपीज एंड सेल्स द आउटपुट जीएसटी 12% फॉर 3000 रुपीज, विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट फॉर दिस सिनेरियो। अब देखिए, अच्छा इनपुट आप निकाल दीजिए, इनपुट टैक्स कितना दिया, 5% ऑफ 2000, 100 रुपीज है, कितना आउटपुट टैक्स कितना कलेक्ट करोगे, 12% है, 12% मीन्स 360, नहीं कि 360 आउटपुट टैक्स है, ठीक है। सिनेरियो देखिए, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल इज 100, ठीक है, 100 निकाल दिया, आउटपुट जीएसटी कलेक्टेड 360, ठीक है। दिस स्पेसिफिक सिनेरियो इज एन एग्जांपल ऑफ इन्वर्टेड, नहीं है ये इन्वर्टेड नहीं है, क्योंकि यहां पर आउटपुट टैक्स ग्रेटर देन इनपुट टैक्स, तो ये इन्वर्टेड ड्यूटी आईडीएस जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में क्या था,
उल्टा था, इनपुट टैक्स ग्रेटर देन आउटपुट टैक्स। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट गलत है, तो उसमें आपको आंसर मिल गया। तो ऑप्शन 1 एंड 2, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, अगेन असर्शन रीजन है। देखिए, assertion is the GST appellate tribunal is being made fully operational to accept appeals under GST, ये करेक्ट है। ए फंक्शनल GST appellate tribunal ensures faster dispute resolution and promotes uniformity in GST rulings across India, ये दोनों करेक्ट है। ओके, तो दोनों करेक्ट है एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए, अभी 3 टायर अपील है। अभी पहले क्या था, एक फास्ट जो अपेलेट अथॉरिटी है, फास्ट अपेलेट अथॉरिटी 80 अपेलेट अथॉरिटी, वो कमिश्नर है। ओके, कौन है? जीएसटी कमिश्नर है। ठीक है, अपील करोगे तो यदि आपको कोई जीएसटी ऑफिसर नोटिस दिया, आप उसको अपील करोगे 90 डेज के अंदर। जिस डेट में आप नोटिस जीएसटी ऑफिसर से रिसीव किया, इसके अगेंस्ट में आप अपील करोगे तो 90 डेज के अंदर आप कमिश्नर को, जैसे स्टेट में जॉइंट कमिश्नर को आप कर सकते हो। ये फास्ट अपीलेट अथॉरिटी है। सपोज इसमें आप खुशी नहीं हुआ तो आप अभी जाएंगे जीएसटीएटी, जीएसटी अपीलेट अथॉरिटी को जाओगे, ये सेकेंड टायर है। ओके, फास्ट अपीलेट अथॉरिटी, ये सेकेंड अपीलेट अथॉरिटी, ये सेकेंड अपीलेट अथॉरिटी, याद रखिए। फिर यदि इसमें कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप हाई कोर्ट जाएंगे सब्सटेंशियल लॉ केस में, और हाई कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मगर ये नहीं था पहले अर्लियर सिस्टम में। डायरेक्टली जो जीएसटी ऑफिसर आपको नोटिस दिया, सपोज आप अपील करना चाहते हो तो सपोज आप कमिश्नर को दे दिया, और एसजीएसटी के ऊपर है जॉइंट कमिश्नर। ओके, सेंट्रल जीएसटी के ऊपर डिस्प्यूट है, कमिश्नर के पास जाएगा। सपोज स्टेट जीएसटी के ऊपर प्रॉब्लम है, जॉइंट कमिश्नर के पास जाएगा। यदि आप खुशी नहीं हुए तो अर्लियर सिस्टम में आप डायरेक्टली उसके बाद सेकेंड अपीलेट अथॉरिटी हाई कोर्ट था और देन सुप्रीम कोर्ट था। मगर अभी क्या है, यदि फास्ट अपीलेट अथॉरिटी का जो रिप्लाई है उसमें आप खुशी नहीं हो, तब आप जाएंगे जीएसटी 80, जीएसटी अपीलेट अथॉरिटी को पास जाओगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये सेकेंड टायर है, जीएसटी 80 सेकेंड टायर है। तो इसमें जो है बोथ ऑप्शंस, क्योंकि ये जो जीएसटी 80 कर दिया, अभी जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है वो क्या करेगा, जो जीएसटी रिलेटेड जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इमीडिएटली उसको रिजॉल्व करेगा। ठीक है, तो हाईकोर्ट जो है थर्ड टायर का, तो हाईकोर्ट के ऊपर ज्यादा बर्डन कम हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम केसेस जीएसटी 80 में सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये सेकेंड टायर अपीलेट अथॉरिटी है। थोड़ा मैं आइडिया आपको दिया, तो यहां पर जो है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, अगेन जीएसटी अपीलेट अथॉरिटी विल इंप्रूव इजी ऑफ डूइंग बिजनेस, ये करेक्ट है। क्विक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन रिड्यूसेस अनसर्टेनिटी इन टैक्स कंप्लायंस, तो ये भी ऑप्शन बोथ आर ट्रू वन एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि अभी जो सेकेंड अपीलेट अथॉरिटी है ये इसको इंट्रोड्यूस किया गया, और इसके वजह से जो भी अनसर्टेनिटीज है, जो भी डिस्प्यूट है, जो भी प्रॉब्लम्स जीएसटी के ऊपर है, ये सेकेंड टायर है अपीलेट अथॉरिटी, उसमें क्लियर हो जाता है। थर्ड टायर जो हाई कोर्ट को हम नहीं जाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट को नहीं जाएंगे, तो इसलिए इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया। तो अभी मैं बताया, इसको थोड़ा ध्यान दीजिए। जो फास्ट अपीलेट अथॉरिटी है, फास्ट अपीलेट अथॉरिटी है कमिश्नर, सेंट्रल गवर्नमेंट में कमिश्नर और स्टेट गवर्नमेंट में जॉइंट कमिश्नर, ये स्टेट गवर्नमेंट में। सपोज खाली जस्ट मैं शॉर्ट में लिख दिया, ये सेंट्रल जीएसटी के ऊपर प्रॉब्लम है, कमिश्नर के पास अपील करोगे। स्टेट जीएसटी में है जॉइंट कमिश्नर, ये फास्ट अपीलेट अथॉरिटी है। यदि जीएसटी ऑफिसर आपको कोई ऑर्डर दिया और उसको आप इसका अगेंस्ट में आप अपील करना चाहते हो तो आप जा सकते हो। जो ये जो है सेकेंड टायर जो अपीलेट अथॉरिटी है वो है जीएसटी 80, ये सेकेंड टायर। अभी ये वेरी फास्टली एक्चुअली जो जीएसटी डिस्प्यूट से रिजॉल्व कर रहा है। तो इसमें क्या होगा ना, हाईकोर्ट के ऊपर जो बर्डन था वो कम हो गया, मैक्सिमम केसेस यहां पर अभी सॉल्व होगा। ठीक है, तो यहां पर जो ऑप्शन है ए इज द करेक्ट आंसर, यहां पर होगा बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, which of the following statements is correct
रिगार्डिंग द कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अपेलेट ट्रिब्यूनल। थोड़ा मैं कंपोजिशन के ऊपर बता देता हूं। इसमें 2 जुडिशियल ऑफिसर्स रहेंगे और एक टेक्निकल ऑफिसर रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट से, एक टेक्निकल ऑफिसर रहेगा स्टेट गवर्नमेंट से। तो आप देखेंगे जीएसटीएटी द फास्ट, ये फास्ट अपेलेट अथॉरिटी नहीं है। फास्ट अपेलेट अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट में कमिश्नर है, स्टेट गवर्नमेंट में जॉइंट कमिश्नर है, ये सेकेंड टायर है। जीएसटीएटी बेंचेस आर टिपिकली कंपोज्ड ओनली ऑफ जुडिशियल, मैं अभी बताया ओनली जुडिशियल मेंबर्स नहीं है, 2 जुडिशियल मेंबर्स है और एक टेक्निकल ऑफिसर सेंट्रल गवर्नमेंट से है, एक टेक्निकल ऑफिसर स्टेट गवर्नमेंट से है। ईच स्टेट बेंच, सभी स्टेट में बेंच है, न्यू दिल्ली उसका हेडक्वार्टर है और एवरी स्टेट में बेंच है। ओके, जीएसटीएटी का ईच यूनियन टेरिटरी, ईच एवरी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी में ईच स्टेट बेंच कंप्राइजेस 2 जुडिशियल मेंबर्स। ये देखिए 2 जुडिशियल मेंबर्स, 1 टेक्निकल मेंबर एंड 1 टेक्निकल मेंबर, 1 टेक्निकल मेंबर सेंटर, 1 टेक्निकल मेंबर स्टेट। यही करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट है। टू एंश्योर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म द प्रिंसिपल बेंच ऑफ जीएसटीएटी deals exclusively with all matters related to IGST। ऑप्शन सी करेक्ट है। एवरी स्टेट में इसका बेंच है और एवरी स्टेट में जो बेंच है उसमें क्या मेंबर्स है, 2 जुडिशियल मेंबर्स है और 1 टेक्निकल मेंबर सेंट्रल गवर्नमेंट से है, 1 टेक्निकल मेंबर स्टेट से है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, इसको ध्यान रखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, द टाइम लिमिट फॉर ए टैक्स पेयर टू फाइल एन अपील before the GST appellate tribunal is typically linked to the date of communication of the order। what is the usual time? देखिए सपोज फास्ट appellate authority आपको ऑर्डर दे दिया, फास्ट appellate authority आपको ऑर्डर दिया, जिस डेट में आपको ऑर्डर रिसीव हुआ, जिस डेट में, मैं शॉर्टकट में लिखता हूं, जिस डेट में आपका ऑर्डर रिसीव हुआ, ठीक है। फास्ट अपीलेट अथॉरिटी कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट में कमिश्नर है, स्टेट गवर्नमेंट में जॉइंट कमिश्नर है। आप कब कमिश्नर के पास जाएंगे? जब सेंट्रल जीएसटी में प्रॉब्लम है, और जब स्टेट जीएसटी में है, कहां प्रॉब्लम है और आपको जीएसटी ऑफिसर ऑर्डर दिया, तो उसके अगेंस्ट में आप अपील करोगे कहां पर? जॉइंट कमिश्नर। ठीक है, मगर इनके जो फास्ट अपीलेट अथॉरिटी का जो रिप्लाई है उसमें आप खुशी नहीं हुए, तो अभी सेकेंड अपीलेट अथॉरिटी को जाओगे। सेकेंड अपीलेट अथॉरिटी कौन है? जीएसटीएटी। तो उसको 90 डेज के अंदर आपको देना है। जिस डेट में आपको ऑर्डर रिसीव होगा फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी से, तो 30 डेज के अंदर आप अपील करोगे। ओके, जीएसटीएटी में। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 30, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ जीएसटीएटी? स्पीडी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन तो है, जो अभी जीएसटी अपीलेट अथॉरिटी को इंट्रोड्यूस किया गया, मेन है, जो भी डिस्प्यूट है स्पीडी रेजोल्यूशन होगा। इंश्योरिंग यूनिफॉर्मिटी इन जीएसटी रूलिंग्स करेक्ट है। रिड्यूसिंग बर्डन ऑन हाई कोर्ट्स, ये भी करेक्ट है, क्योंकि पहले हाई कोर्ट के ऊपर ज्यादा बर्डन था। फ्रेमिंग जीएसटी लॉज एंड पॉलिसीज, ये गलत है। जीएसटीएटी क्या करेगा? जो जीएसटी रिलेटेड डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व करेगा, वो लॉज एंड पॉलिसीज फ्रेम नहीं करेगा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, अनदर क्वेश्चन रिलेटेड टू जीएसटीएटी फंक्शंस आज व्हिच लेवल ऑफ अपीलेट बॉडी? मैं बता चुका हूं बहुत बार, ये सेकंड अपीलेट बॉडी है। फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी है कमिश्नर सेंट्रल गवर्नमेंट में और जॉइंट कमिश्नर स्टेट गवर्नमेंट में, ये सेकंड अपीलेट है। थर्ड हाई कोर्ट है, फोर्थ सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, लास्ट वन। तो सेकंड अपीलेट अथॉरिटी जीएसटीएटी है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, फॉर अपील्स related to central goods and services tax the first appellate authority is typically the, मैं बताया था, यदि सेंट्रल जीएसटी में कुछ प्रॉब्लम है तो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी कौन है? वो कमिश्नर अपील्स। यदि स्टेट जीएसटी के ऊपर प्रॉब्लम है, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी है जॉइंट कमिश्नर। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सेकेंड अपीलेट अथॉरिटी है जीएसटी अपीलेट अथॉरिटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, इफ ए टैक्स पेयर इज स्टिल अनसेटिस्फाइड विथ एन ऑर्डर पास्ड बाय द जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल द नेक्स्ट फोरम क्या है? यदि जीएसटीएटी में जो भी ऑर्डर पास किया उसमें टैक्स पेयर अनसेटिस्फाई है, तब वो हाई कोर्ट जाएगा। ये थर्ड अपीलेट अथॉरिटी है, हाई कोर्ट जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अल्टीमेट अथॉरिटी कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 34, इसमें ऑप्शंस दिया है, देखिए वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, मैं अंडरलाइन कर दिया, करेक्ट स्टेटमेंट एडिट करेंगे। फॉर स्पेसिफिक साइन गुड्स लाइक दैट इज पान मसला गुटका, द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स विल नाउ बी लेविड ऑन द ट्रांजैक्शन वैल्यू इंस्टेड ऑफ द रिटेल सेल प्राइस। ओके, विल नाउ, ये गलत है, विल नाउ लेविड ऑन द ट्रांजैक्शन वैल्यू इंस्टेड, इसको मैं एग्जांपल में बताता हूं, ये गलत है। द वैल्यूएशन विल चेंज फॉर साइन गुड्स इज प्राइमरली एम्ड एट रिड्यूसिंग अंडर इनवॉइसिंग एंड इंक्रीजिंग टैक्स ट्रांसपेरेंसी, ये ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मैं इसके ऊपर भी मेरा थ्योरी पार्ट देखिए, थ्योरी पार्ट का वीडियो मैं इसके ऊपर क्लियरली मेंशन कर चुका हूं। उसमें एक एग्जांपल देता हूं, जैसे आपको सपोज पान मसला के ऊपर देता हूं, इसके ऊपर एक एग्जांपल देता हूं। पहले क्या था, इसके ऊपर एक्चुअली रिटेल प्राइस था, पैकेट के ऊपर जो प्राइस था, रिटेल सेलिंग प्राइस पैकेट के ऊपर जो प्राइस था 100 था, मगर जब मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर को सेल किया, वो अंडर जो वैल्यू को ट्रांजैक्शन वैल्यू ले लिया। ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या है ना, जिस वैल्यू में वो बेचेगा, वो एक्चुअली सपोज 40 रुपीज में बेचता था, ये ट्रांजैक्शन वैल्यू, एक्चुअली उसके पैकेट के ऊपर 100 रुपीज है, मगर मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर को बेच रहा है ₹40 में, और उसी के ऊपर टैक्स लगेगा। तो उस समय क्या टैक्स था, अर्लियर सिस्टम में 28% जीएसटी था और सेस था। तो इसमें अंडर इनवॉइसिंग होता था, ठीक है, आप समझ रहे हो कि नहीं, जो पैकेट के ऊपर जो है उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता था, ठीक है। तो इसमें क्या कैसे था ना, मैन्युफैक्चरर पैकेट के ऊपर 100 रुपीज लिखा गया है, मगर मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर को अंडर इनवॉइस करके 40 रुपीज के 40 रुपीज में बेचता था और उसी के ऊपर जीएसटी लगता था। तो इसमें क्या है, टैक्स लीकेज होता था। मगर अभी ये ट्रांजैक्शन वैल्यू है, ये ट्रांजैक्शन वैल्यू है 40 रुपीज, जो मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर को बेच रहा है, मगर पैकेट के ऊपर कितना है, ₹100 है। मगर अभी क्या किया, अभी सिस्टम में कर दिया, जो आरएसपी, जो रिटेल सेलिंग प्राइस है, भाई इसको बोलते हैं जो एमआरपी है, जो एमआरपी पैकेट के ऊपर है उसी के ऊपर जीएसटी लगेगा, कितना, 40%। तो इसमें क्या होगा, टैक्स ट्रांसपेरेंसी होगा, टैक्स लीकेज नहीं होगा, ठीक है। पहले टैक्स कम कलेक्शन होता था, मगर अभी टैक्स ज्यादा कलेक्शन होगा, ठीक है, टैक्स लीकेज नहीं होगा। अभी आरएसपी के ऊपर लगेगा, आरएसपी मींस मार्केट, जो पैकेट के ऊपर जो प्राइस है उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, मगर पहले नहीं था। पहले पैकेट के ऊपर एक ज्यादा प्राइस था, मगर मैन्युफैक्चरर जानबूझकर होलसेलर को कम प्राइस कर देता था। 100 रुपीज पैकेट के ऊपर है, मगर वो 50 रुपीज में बेच रहा है होलसेलर को, और उसी के ऊपर 50 रुपीज के ऊपर जीएसटी लगता था। पहले अर्लियर सिस्टम में 28% और सेस था, और अभी गवर्नमेंट मना किया, उसमें टैक्स लीकेज होता था। अभी बोल दिया कि आरएसपी, जो पैकेट के ऊपर जो है उसी के ऊपर टैक्स जीएसटी लगेगा। तो इसमें मैं बताया था ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 35, whether the following statements is are correct स्टेटमेंट एडिट करेंगे। द रिवाइज्ड जीएसटी वैल्यूएशन, इसको जीएसटी वैल्यूएशन रूल्स बोलते हैं, अभी जो मैं बताया, बेस्ड ऑन आरएसपी अप्लाई ओनली टू कॉमन गुड्स लाइक फूड आइटम। नहीं, ये आरएसपी जो आरएसपी जो रिटेल सेलिंग प्राइस के ऊपर जो जीएसटी लग रहा है, वो बेसिकली डिमेरिट गुड्स, ये जो 40% जीएसटी लग रहा है, ये डिमेरिट और साइन गुड्स, डिमेरिट और साइन मीन्स क्या है, पान मसला गुटखा सिगरेट, इसके ऊपर, ओके, जो भी पैकेट के ऊपर जो प्राइस है उसी के ऊपर जीएसटी लगेगा, नहीं कि फूड आइटम्स आप पर लिए, नहीं, गलत है। अच्छा, नेक्स्ट वन, तो ये गलत है। सेकंड वन, लेविंग जीएसटी बेस्ड ऑन द आरएसपी इज ए mechanism used by the tax department to ensure that tax is paid on the maximum potential sale price. Tax is paid on the maximum potential sale price regardless of the price at which the manufacturer sells it to the distributor. मगर अभी वो कौन सा प्राइस में मैन्युफैक्चरर कौन सा प्राइस में डिस्ट्रीब्यूटर को बेच रहे हैं हम नहीं देखेंगे, मगर अभी जो रिटेल सेलिंग प्राइस है, मैक्सिमम पोटेंशियल सेलिंग प्राइस है, उसके ऊपर ही जीएसटी लगेगा। वो कौन सा प्राइस में बेचेगा, जो पैकेट के ऊपर जो प्राइस है उसी के ऊपर जीएसटी लगेगा। तो ऑप्शन 2 जो है करेक्ट है। सो स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 36, whether the following statements is or are correct
यहाँ पर भी करेक्ट स्टेटमेंट देखेंगे। अंडर द न्यू रूल्स फॉर गुड्स लाइक पान मसला ए मैन्युफैक्चरर मस्ट कैलकुलेट जीएसटी बेस्ड ऑन द मैक्सिमम प्राइस प्रिंटेड ऑन द पैकेट इवन इफ द एक्चुअल सेल प्राइस टू द डीलर वाज लोअर। करेक्ट है। वो एक्चुअल अभी जो मैक्सिमम जीएसटी किसके ऊपर लगेगा, जो बेसिकली पान मसला गुटखा सिगरेट ये सब में मैक्सिमम प्राइस प्रिंटेड ऑन द जो पैकेट के ऊपर प्राइस है उसी के ऊपर जीएसटी लगेगा। चाहे कम प्राइस में बेचे मैन्युफैक्चरर डीलर को वो कोई बात नहीं, मगर पैकेट के ऊपर जो प्राइस है उसी के ऊपर लगेगा। ठीक है। अभी जैसे आरएसपी है 100 रुपीज, इसी के ऊपर जीएसटी लगेगा। मगर पहले क्या था, मैन्युफैक्चरर डीलर को बेच रहा था कि इसको वो जानबूझकर वो पैकेट में 100 रुपीज है मगर वो 50 रुपीज में बेचता था, तो इसी के ऊपर जीएसटी लगता था। ये ट्रांजैक्शन वैल्यू उसी के ऊपर जीएसटी लगता था। मगर अभी वो ये सिस्टम को बंद कर दिया। अभी बोला जो पैकेट के ऊपर है उसी के ऊपर जीएसटी लगेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। The goal of increasing tax transparency is achieved by moving the tax base to a point that is difficult for manufacturers to manipulate compared to their internal transaction value। ये भी करेक्ट है। इसमें कुछ मैनिपुलेशन नहीं है, कोई टैक्स लीकेज नहीं होगा। अभी जो पैकेट के ऊपर जो प्राइस है उसी के ऊपर टैक्स लगेगा। चाहे मैन्युफैक्चरर को कोई भी कम प्राइस में बेच दे होलसेलर को, कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर जो पैकेट के ऊपर है उसी के ऊपर जीएसटी लगेगा। तो इसमें क्या आया, एक ट्रांसपेरेंसी आ गया। और टैक्स लीकेज जो कम टैक्स गवर्नमेंट को जा रहा था अभी नहीं जाएगा, और मैन्युफैक्चरर भी मैनिपुलेशन नहीं कर सकता। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स हैव जीएसटी वैल्यूएशन शिफ्टेड फ्रॉम ट्रांजैक्शन वैल्यू टू रिटेल सेल प्राइस। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मैं बता चुका हूं अभी, आरएसपी के ऊपर जो पैकेट के ऊपर है उसी के ऊपर जीएसटी लगेगा। पहले क्या था, पैकेट के ऊपर एक प्राइस था मगर उससे कम वैल्यू के ऊपर प्राइस लगता था, वही ट्रांजैक्शन वैल्यू। जिस प्राइस में मैन्युफैक्चरर और होलसेलर को बेचता था वो ट्रांजैक्शन वैल्यू। और अभी क्या है, रिटेल सेल, डायरेक्टली रिटेल सेल प्राइस के ऊपर जो पैकेट के ऊपर प्राइस है उसी के ऊपर जीएसटी लगेगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, जीएसटी विल नाउ बी लेविड ऑन आरएसपी मेनली टू। अच्छा, रिटेल जो सेल प्राइस है, जो पैकेट के ऊपर जो प्राइस है, इसके ऊपर अभी गवर्नमेंट क्यों जीएसटी लगा रहा है कि टैक्स इवेजन नहीं होगा और अंडर इनवॉइसिंग नहीं होगा, इसके इसीलिए। ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, रिड्यूस अंडर इनवॉइसिंग एंड टैक्स इवेजन। क्योंकि पहले देखिए मजा बात, ये अर्लियर सिस्टम में क्या था, आरएसपी सपोज 500 था मगर मैन्युफैक्चरर जो होलसेलर को बेच रहा था वो ₹300 में बेच रहा था, तो टैक्स यही है ट्रांजैक्शन वैल्यू, यही ट्रांजैक्शन वैल्यू, इसी के ऊपर जीएसटी लगता था। मगर ये सिस्टम को भी बंद कर दिया। अभी आरएसपी जो इसी के ऊपर जीएसटी लगेगा। पहले क्या था, अंडर 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 इनवॉइसिंग मींस यही है, मार्क प्राइस कितना है, आरएसपी कितना है, पैकेट के ऊपर कितना है 500 है, मगर मैन्युफैक्चरर और होलसेलर को कितने में बेच रहा है 300 में, तो अंडर इनवॉइसिंग हो गया और टैक्स इवेजन भी हुआ। अभी किसके ऊपर टैक्स लग रहा है, 300 के ऊपर, नॉट 500 के ऊपर नहीं लग रहा है। तो अभी वो सिस्टम, ये सिस्टम को बंद किया, जो आरएसपी है उसी के ऊपर लगेगा। ठीक है। चलो ठीक है। 39, ट्रांजैक्शन वैल्यू मींस मैं अभी बताया था, तो प्रिंटेड एमआरपी ऑफ द गुड्स, प्रिंटेड एमआरपी वही रिटेल सेल प्राइस है, द वैल्यू डिक्लेयर्ड बाय द सेलर, द प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल फॉर द सप्लाई, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ओके, तो इसमें ट्रांजैक्शन वैल्यू द प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल, ओके, फॉर द सप्लाई। आप समझ रहे हो, ये ट्रांजैक्शन वैल्यू है, द प्राइस एक्चुअली पेड, ये है द प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल फॉर द सप्लाई। माने एक्चुअली क्या है, मजा बात है, पैकेट के ऊपर ये है 500 रुपीज है, मगर अभी सप्लाई जब हम कर रहे हैं प्राइस एक्चुअली कितना पेड हो रहा है, प्राइस एक्चुअली पेड हो रहा है 300 रुपीज, यही है ट्रांजैक्शन वैल्यू। और इसको बेच रहा है कौन ना, सपोज मैन्युफैक्चरर बेच रहा है होलसेलर को, इसे करके, और इसी के ऊपर जीएसटी लगता था पहले। ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसको भी मेरा थ्योरी पार्ट देख लीजिए जीएसटी के ऊपर, पर क्लियरली मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 को चलेंगे। यहां पर भी असर्शन रीजन है, जीएसटी ऑन सिगरेट्स, गुटखा एंड सिमिलर साइन गुड्स विल नाउ बी कैलकुलेटेड ऑन आरएसपी, ये करेक्ट है। दिस रिड्यूसेस अंडर इनवॉइसिंग एंड एंश्योर्स करेक्ट टैक्स बेस्ड ऑन रियल मार्केट प्राइस, ये दोनों करेक्ट है, एंड ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बोथ ए एंड आर ट्रू वन, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए।
तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, अंडर द रिस्क बेस्ड प्रोविजनल रिफंड सिस्टम व्हाट परसेंटेज ऑफ द प्रोविजनल रिफंड विल बी ग्रांटेड इमीडिएटली। ये 90% है। मैं एक एग्जांपल देता हूं, इसमें आप क्लियर हो जाओगे। सपोज एक आप एक्सपोर्टर हो, ठीक है, एक्सपोर्टर हो, आप जब रॉ मटेरियल खरीदा तब आप इनपुट टैक्स सपोज पे किया 500, जब रॉ मटेरियल आप खरीदा। मगर जब आप एक बेच रहे हो आपका प्रोडक्ट, तो एक्सपोर्ट के ऊपर, ठीक है, एक्सपोर्ट के ऊपर तो नहीं है आउटपुट टैक्स। जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, एक्सपोर्ट के ऊपर अभी जीएसटी रेट 0% है, तो आउटपुट टैक्स 0 है, क्योंकि एक्सपोर्ट के ऊपर, आप याद रखिए, एक्सपोर्ट के ऊपर जीएसटी 0% है। ठीक है, तो इसमें आपको जो इनपुट टैक्स, ये तो क्रेडिट होगा, ये तो आपको प्रोड्यूसर को रिटर्न किया जाएगा, क्योंकि रॉ मटेरियल जो परचेज किया था, इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये तो क्रेडिट होगा। अच्छा, पहले क्या था, आप अप्लाई कर रहे थे, गवर्नमेंट बहुत टाइम लेता था इसको क्रेडिट करने के लिए, मगर अभी बोल दिया कि ऑटोमेटेड सिस्टम में उसका 90% आपको इमीडिएटली पेमेंट कर देगा। अभी इमीडिएटली 90% पेमेंट कर देगा और 10% लेटर, 10% बाद में करेगा, मगर अभी तो 90% ऑटोमेटेड सिस्टम ही है, वो ऑटोमेटिकली आपको पेमेंट हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा। तो भाई ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 42, the immediate grant of the provisional refund is based on manual scrutiny, the exporter's credit rating, automated data analysis or risk evaluation, a physical inspection of the exported goods। ऑटोमेटेड डाटा सिस्टम में रिफंड होगा। जो भी रिफंड अभी होना है 90% इमीडिएटली रिफंड हो जाएगा, 90% इमीडिएटली हो जाएगा और 10% लेटर होगा। ठीक है, इसको याद रखिए, इमीडिएटली हो जाएगा, 10% लेटर होगा। ये ऑटोमेटेड डाटा एनालिसिस और रिस्क एवेल्युएशन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 43, which of the following cases are explicitly mentioned as being applicable to the new risk based provisional refund? न्यू रिस्क बेस्ड प्रोविजनल जीरो रेटेड सप्लाईज एक्सपोर्ट्स, दैट यही होगा, क्योंकि अभी इसी के ऊपर ये जो न्यू रिस्क बेस्ड प्रोविजनल रिफंड सिस्टम इसी रिलेटेड में आ गया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जैसे अभी बताया था कि एक एक्सपोर्टर है, और एक बार बता देता हूं, ए एक्सपोर्टर, ठीक है, ए, वो जब इनपुट खरीदा, वो इनपुट टैक्स, जब रॉ मटेरियल्स खरीदा, इनपुट टैक्स दिया 300 रुपीज, मगर आउटपुट टैक्स एक्सपोर्ट जब कर रहा है, एक्सपोर्ट के ऊपर 0% जीएसटी है, तो आउटपुट टैक्स कितना हो गया, 0 हो गया। तो अभी ₹300 तो रिफंड होगा, क्योंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट, यही तो आईटीसी है, इनपुट टैक्स क्रेडिट है। ठीक है, कि ये तो रिफंड होगा, ये रिफंड होगा कि नहीं? तो ये जो रिफंड होगा इमीडिएटली 90% उसका रिफंड हो जाएगा और 10% लेटर होगा। तो इसी केस के लिए जो न्यू रिस्क बेस्ड प्रोविजनल रिफंड सिस्टम लाया, जीरो रेटेड सप्लाईज, दैट इज टू से एक्सपोर्ट्स केस में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 44, what is a key benefit of the immediate provisional refund for exporters as mentioned in the reform details? मैं अभी जो एग्जांपल दिया, reduction in tax rates, unblocking of working capital, exemption from all future audits, simplification of import procedures, ये unblocking of working capital। क्योंकि देखिए, आपका इनपुट टैक्स आप ऑलरेडी जब रॉ मटेरियल खरीदे थे टैक्स पे कर चुके हो, मगर आउटपुट टैक्स आपका 0 है, क्योंकि एक्सपोर्ट केस में ये जो ये डेफिनेटली इसमें लिख दिया, एक्सपोर्ट केस में जीएसटी रेट 0 है, 0 है। तो ये जो आपको ये क्रेडिट होगा, रिफंड कितना होगा, 500 होगा। यहां पर गवर्नमेंट आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट ना, रिफंड कितना करेगा, 500, यही है इनपुट टैक्स क्रेडिट। मगर ये ब्लॉक होता था, गवर्नमेंट इमीडिएटली नहीं देता था। तो इसलिए क्या है, आपका जो फर्दर इन्वेस्टमेंट है, जैसे फर्दर आप रॉ मटेरियल्स खरीदोगे, वर्किंग कैपिटल का मीनिंग क्या है, वर्किंग कैपिटल मीन्स रॉ मटेरियल्स, दोस टाइप ऑफ कैपिटल्स वी नीड, ओके, टू प्रोड्यूस द फाइनल कमोडिटी, रॉ मटेरियल्स वर्किंग कैपिटल। तो रिफंड 500 वो होल्ड करके गवर्नमेंट रखता था। तो अनब्लॉक माने ये, इसको अनब्लॉक करने के लिए अभी गवर्नमेंट ये जो सिस्टम लाया, इमीडिएट प्रोविजनल रिफंड सिस्टम, गवर्नमेंट बोल दिया कि इमीडिएटली जितना रिफंड 90% इमीडिएटली रिफंड हो जाएगा और 10% लेटर में होगा।
ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल कंफ्यूजन नहीं होना है। वर्किंग कैपिटल बेसिकली रॉ मटेरियल्स, दोस टाइप ऑफ मटेरियल्स अगेन मस्ट बी प्रोसेस्ड एंड कन्वर्ट टू ए फाइनल कमोडिटी। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 45 में चलेंगे। द न्यू रिफंड सिस्टम रिमूव्स द एक्सपोर्ट रिफंड थ्रेशोल्ड फॉर व्हिच स्पेसिफिक टाइप ऑफ कंसाइनमेंट। ये आप देखिए, लार्ज कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट वैल्यूड ओवर ए स्पेसिफाइड लिमिट, स्मॉल एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट्स वाया कोरियर और पोस्ट, ऑल कंसाइनमेंट्स वैल्यूड अंडर ए स्पेसिफाइड लिमिट। ये कोरियर, स्मॉल एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट्स वाया कोरियर और पोस्ट, पहले क्या था, एक थ्रेशोल्ड रखा था, मिनिमम लिमिट रखा था। जैसे आप जो कोरियर कर रहे हैं, जो जो छोटा छोटा कंपनी है वो कोरियर में भेज रहे हैं, कोरियर और पोस्ट में, ये है। तो उनका जो पैकेजिंग देखिए, जैसे ये सब लगेगा कि नहीं, ये सब रॉ मेटेरियल पैकेज है कि थ्रेड है, इसमें पैसा लगता था। आप समझ रहे हो कि नहीं, पैकेज थ्रेड इसमें पैसा लगता था। तो ये एक जब मिनिमम, इसके ऊपर जो मिनिमम एक थ्रेशोल्ड था, अभी थ्रेशोल्ड कुछ नहीं है, पहले एक थ्रेशोल्ड था कि इसमें सपोज ₹600 होगा तो रिफंड होगा, नहीं तो नहीं। सपोज इसको थ्रेशोल्ड सपोज ग्रेटर देन ₹600, ये जो कोरियर में भेजने के लिए सब चाहिए ना, पैकेज सिस्टम, पैकेज थ्रेड, ये सब चाहिए कि नहीं। यदि ग्रेटर देन ₹600 होगा तब रिफंड होगा, मगर अभी वो थ्रेशोल्ड को हटा दिया, क्योंकि इसमें कोई भी जो भी खर्च होगा रॉ मटेरियल्स के ऊपर, जो भी खर्च होगा रॉ मटेरियल्स के ऊपर, आरए मींस रॉ मटेरियल्स के ऊपर, वो रिफंड होगा। आप समझ रहे कि नहीं। तो स्मॉल एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट्स बाय कोरियर और पोस्ट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, द सिंप्लीफाइड जीएसटी रजिस्ट्रेशन स्कीम इज एन ऑप्शनल स्कीम इंट्रोड्यूस फॉर व्हिच कैटेगरी और बिजनेसेस। अब एक सिंप्लीफाइड जीएसटी रजिस्ट्रेशन, इसको देखिए, सिंप्लीफाइड जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्या है, जो स्मॉल बिजनेस है, ओके, जो रिस्क फ्री बिजनेस है, उनको बोल दिया गया कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन 3 दिन के अंदर होगा। और मेजोरिटी केसेस में विदाउट फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स नहीं चाहिए, और स्मॉल जो बिजनेस है वो अप्लाई करेंगे तो 3 दिन के अंदर उनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और मैक्सिमम केसेस देयर इज नो नीड ऑफ रिकॉर्ड्स, देयर इज नो नीड ऑफ फिजिकल रिकॉर्ड्स। तो इसमें दे दिया ये ऑप्शन सी, स्मॉल लो रिस्क बिजनेसेस में। Okay, option C is the correct answer. Question number 47, what is the typical time frame? What is the typical time frame for automated approval under the simplified GST registration? ये जो अभी बता दिया कि स्मॉल शॉप्स है, कि स्मॉल बिजनेसेस है, जो लो रिस्क बिजनेस है, यदि वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे, उनका 3 वर्किंग डेज के अंदर हो जाएगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन। उसमें कोई विद मेजॉरिटी केसेस देयर इज नो नीड ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, विद इन 3 वर्किंग डेज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48, फॉर बिजनेसेस यूजिंग द सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन स्कीम फिजिकल वेरिफिकेशन इज जनरली, फिजिकल मैक्सिमम केसेस में फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स नहीं चाहिए। ओके, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, डिस्पेंस्ड विथ इन मोस्ट केसेस, मोस्ट केसेस में कोई फिजिकल रिकॉर्ड्स का जरूरत नहीं है। यदि स्मॉल शॉप की सपोज एनी लो रिस्क बिजनेस वो अप्लाई करेंगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए, तो ऑटोमेटिकली 3 डेज के अंदर उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा विदाउट वेरिफिकेशन ऑफ देयर फिजिकल रिकॉर्ड्स। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, under the amended GST rule, the place of supply for intermediary service is now based on, ये इसको मैं बता देता हूं, एक एग्जांपल देता हूं। ये जो प्लेस ऑफ सप्लाई के ऊपर इंटरमीडियरी सर्विस, इसको मैं एनसर्कल कर दिया। इंटरमीडियरी सर्विस क्या है, जैसे ट्रैवल एजेंट है, सपोज इंडियन ट्रैवल एजेंट, इसको अच्छे से समझिए, इंडियन एक ट्रैवल एजेंट, सपोज इंडियन ट्रैवल एजेंट, उसका नेम है ए है, और ये क्या है, किसको सर्विस दे रहा है, सपोज फॉरेन टूरिस्ट को सर्विस दे रहा है, फॉरेन टूरिस्ट है, सपोज वो यूएसए का है। ओके, ये ट्रैवल एजेंट इसको सर्विस दे रहा है। मेरा एग्जांपल में एक टूरिस्ट है, वो यूएसए से है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका से है, उसको सर्विस दे रहा है। ठीक है, ये जो टूरिस्ट है ये घूमने के लिए जा रहा है, सपोज साउथ अफ्रीका का एक वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी है, ओके, कि एक सपोज ये जो जाएगा, सपोज जू इन सपोज जर्मनी,
मैं कर दिया। सपोज मेरा एग्जांपल में जू इन जर्मनी, ये टूरिस्ट चाहता है यहां पर विजिट करेगा जू इन जर्मनी, ठीक है, और ये अभी टिकट बुक करना चाहता है, वो जाएगा, एक जू है जर्मनी में, वो घूमने के लिए जाएगा और वो यूएसए का टूरिस्ट है और वो इंडियन ट्रैवल एजेंट का हेल्प ले रहा है, ठीक है। तो इसमें मजा बात है, ये लोकेशन, जो टूरिस्ट का लोकेशन क्या है, यूएसए है, तो हम लोकेशन देखेंगे। हम ये जो ट्रैवल एजेंट, हमारा जो इंडियन ट्रैवल एजेंट, वो जो सप्लाई करेगा सर्विस, वो उसका लोकेशन कहां पर है, यूएसए लोकेशन है, क्योंकि टूरिस्ट कहां से है, लोकेशन उसका यूएसए में है, मगर वो चाहता है, वो ट्रैवल एजेंट, इंडियन ट्रैवल एजेंट का हेल्प लेके वो जर्मनी में एक जू है, वो वहां पर विजिट करेगा, पहले तो टिकट करेगा ना। तो लोकेशन यूएसए हो गया। जब लोकेशन यूएसए में हो गया, फॉरेन टूरिस्ट का लोकेशन हम डिटेक्ट कर लिए, वो हमारे लिए एक्सपोर्ट हो गया। आप समझ रहे कि नहीं? तो लोकेशन तो फॉरेन कंट्री में यूएसए है ना, टूरिस्ट तो यूएसए से है, वो वहां से ट्रैवल एजेंट, इंडियन ट्रैवल एजेंट का हेल्प लेके टिकट बुक करना चाहता है जू इन जर्मनी। तो लोकेशन हमारे लिए क्या हो गया, अब्रॉड हो गया। तो अभी वो हमारे लिए क्या क्या हो गया, ट्रैवल एजेंट के लिए एक्सपोर्ट हो गया। तो एक्सपोर्ट मीन्स 0% जीएसटी, एक्सपोर्ट मीन्स 0% जीएसटी, यहां पर जीएसटी नहीं लगेगा। सपोज सर्विस फी है, सर्विस फी वो जो पे करेगा ट्रैवल एजेंट को, सपोज 1 लाख है, ओनली 1 लाख पे करेगा, इसमें जीएसटी नहीं है, इसमें जीएसटी नहीं है। तो इसलिए कंपटीशन हो गया। अभी जब फॉरेन टूरिस्ट कोई एक प्लेस को विजिट करना चाहते हैं, ओके, कोई एक टूरिस्ट प्लेस है वर्ल्ड का कोई भी कॉर्नर में, तो वो ट्रैवल एजेंट का हेल्प लेंगे, क्योंकि अभी तो हम लोकेशन को देखेंगे। तो हमारा ट्रैवल एजेंट अभी लोकेशन को देखेगा कि हमारा ट्रैवल एजेंट देख रहा है कि फ्रांस का एक टूरिस्ट, वो चाहता है साउथ अफ्रीका के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को घूमने के लिए जाएगा। तो हमारे लिए जो फ्रांस का टूरिस्ट है वो तो अब्रोड में है ना, लोकेशन तो अब्रोड हो गया, वो हमारे लिए एक्सपोर्ट हो गया। तो हम जो सर्विस देंगे, वो जो हमको जो फी पे करेगा उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये लोकेशन हम देखेंगे, लोकेशन ऑफ सप्लायर गुड्स इंडिया के अंदर नहीं होगा, ओनली अब्रोड केस में, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसके ऊपर भी मेरा एग्जांपल है थ्योरी पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 50, what is the main benefit of changing the place of supply for intermediary services? Zero rated, ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इंडियन इंटरमीडियरीज कैन ट्रीट सर्विसेज टू फॉरेन क्लाइंट्स आज एक्सपोर्ट, जीरो रेटेड, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एक और एक एग्जांपल दे देता हूं, जैसे एक इंडियन ट्रैवल एजेंट, इंडियन ट्रैवल एजेंट, ठीक है, और ये सर्विस किसको दे रहा है, सर्विस दे रहा है फॉरेन टूरिस्ट, ठीक है, फॉरेन टूरिस्ट, वो फ्रांस का है, फॉरेन टूरिस्ट बिलोंग्स टू फ्रांस। अच्छा, ये कहाँ घूमने के लिए जाएगा, ये जाएगा यूएसए का एक वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी, इसको वो घूमने के लिए जाएगा, मैं के लिए ऐसे एनसी कर दिया, ठीक है, यहां पर वो घूमने के लिए जाएगा। तो हमारा इंडियन ट्रैवल एजेंट का वो हेल्प लेना चाहता है, ठीक है, ये टूरिस्ट फ्रांस से है, तो हमारे लिए लोकेशन अपलोड हो गया। तो अपलोड हो गया मीन्स ये हमारे लिए क्या है, एक्सपोर्ट, जो हम सर्विस देंगे फॉरेन टूरिस्ट, फ्रांस का जो फॉरेन टूरिस्ट को, वो हमारे लिए एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस जो हुआ वो एक्सपोर्ट हो गया ना। तो यहाँ पर जीएसटी रेट 0 है। सपोज सर्विस चार्ज है, ये जो टिकट बुक करेगा उसका सर्विस फी है सपोज 1 लाख है, तो ओनली 1 लाख ही पे करेगा फॉरेन जो फ्रांस का टूरिस्ट। इसके ऊपर जो होगा, इसके ऊपर क्या होगा ना, जीएसटी 0% होगा, जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि हमारा जो जिसको हम एक्सपोर्ट करेंगे सप्लाई, वो अब्रोड में है, तो एक्सपोर्ट हो गया। एक्सपोर्ट केस में हमारा जीएसटी रेट क्या है, 0 है, यहां पर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है, ठीक है, क्लियर। तो इसमें ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 51, जीरो रेटेड सप्लाई, जीरो रेटेड सप्लाई मीन्स याद रखिए ऑप्शन सी, जीएसटी 0% आएगा, आईटीसी रिफंड अवेलेबल, बट 0% क्या होगा ना, जीएसटी 0% होगा, ठीक है। एक एग्जांपल देता हूं, जैसे आईटीसी मीन्स इनपुट टैक्स क्रेडिट, मैं बता चुका हूं इसको बहुत बार, अच्छे से बता चुका हूं। सपोज आप एक्सपोर्टर, वो इनपुट टैक्स पे कर रहा है 200, मगर
वो आउटपुट टैक्स उसके लिए जीरो है, क्योंकि वो एक्सपोर्ट जो कर रहा है उसके ऊपर जीरो है। आउटपुट टैक्स क्या है, जीरो है, क्योंकि एक्सपोर्ट के ऊपर जीएसटी रेट जीरो है। तो ये तो क्रेडिट होगा ना, इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी तो क्रेडिट होगा। आईटीसी आईटीसी क्या होगा, क्रेडिट होगा, मगर जीएसटी रेट जीरो है, यही है जीरो रेटेड सप्लाई। जीरो रेटेड सप्लाई मीन्स ओनली एक्सपोर्ट के ऊपर। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल नाउ क्वालिफाई एज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस में देखेंगे, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस मीन्स वो फॉरेन लोकेशन होना चाहिए। टू इंडियन कंपनीज नहीं होगा, इंडियन सप्लायर एंड इंडियन कस्टमर नहीं होगा, टू फॉरेन कंपनीज, एन इंटरमीडियरी इन इंडिया अरेंजेस ए डील बिटवीन टू फॉरेन कंपनीज, यही होगा। इंडियन इंटरमीडियरी एंड इंडियन वायर नहीं होगा, इंडिया में नहीं होगा। हमको यहां पर जो डील हम करेंगे टू फॉरेन कंपनीज में डील, तो हमारे लिए जो फॉरेन कंपनीज जो है वो अन इंटरमीडियरी इन इंडिया अरेंजेस ए डील बिटवीन टू फॉरेन कंपनीज। ये फॉरेन कंपनीज क्या है, सपोज उनका लोकेशन क्या है, अब्रोड में है ना, तो उनको हम इंटरमीडियरी सर्विस दे रहे हैं मीन्स, तो वो हमारे लिए क्या हो गया, एक्सपोर्ट हो गया, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के ऊपर क्या है, जीएसटी रेट क्या है, जीरो है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53, a restaurant located within a hotel premises where the value of supply of any unit of accommodation exceeds per unit per day is classified as। ये specified premises, देखियो मैं बता देता हूं। कोई आप होटल देखिए, इसको अच्छे से समझिए, होटल देखिए जहां पर पर नाइट यदि ग्रेटर दैन 7,500 है, तब उसको स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस हम बोलेंगे। पर रूम पर नाइट होटल में ग्रेटर देन 7,500 है, स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस। अच्छा, स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस के ऊपर जीएसटी 18% होगा और आईटीसी रिफंड होगा। आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट भी रहेगा, ये भी इंक्लूडेड, आप समझ रहे हो। अदरवाइज जो रहेगा जीएसटी 5% रहेगा और देयर इज नो आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं होगा, याद रखिए। तो स्पेशल प्रीमाइसेस मींस यही है, जो होटल है, होटल में जो पर रूम पर नाइट ग्रेटर देन 7,500, ये होने से क्या है, जीएसटी 18% रहेगा और आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा। इससे कम होगा, ठीक है, इसमें क्या होगा, सपोज एक एग्जांपल देता हूं, इसमें सपोज एक होटल है, पर रूम पर नाइट लेस देन 7,500, इसमें क्या होगा ना, जीएसटी 5% होगा प्लस नो आईटीसी, इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं होगा। ठीक है, क्लियर। तो स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस यही है, इसको बोलते हैं जहां पर रूम पर नाइट एक्सीड्स ग्रेटर देन 7,500 है और उसके अंदर रेस्टोरेंट होगा, इसी के अंदर रेस्टोरेंट है, तो स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस है। ठीक है, और एक देखिए स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट, ओनली रेस्टोरेंट है, स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट, व्हाट इज द जीएसटी रेट, स्टैंड अलोन ओनली रेस्टोरेंट, स्पेसिफाइड नॉट लोकेटेड इन ए स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस तो बताया ना होटल, मगर स्टैंड अलोन ओनली रेस्टोरेंट है, वहां पर मजा बात है 5% अभी जीएसटी होगा और नो आईटीसी, कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं होगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं होगा। ठीक है, 5% विदाउट इनपुट टैक्स क्रेडिट, नो आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया है, आप जब ओनली रेस्टोरेंट को जाएंगे आप देखेंगे तो जीएसटी 5% है और वहां पर नो आईटीसी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55, व्हाट इज द जीएसटी रेट एप्लीकेबल टू ए रेस्टोरेंट लोक। अच्छा, स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस में रेस्टोरेंट है, स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस में क्या बताया था, स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस बताया था कि एक रूम का प्राइस, वन रूम पर नाइट प्राइस होगा ग्रेटर देन 7,500 और उसी प्रीमाइसेस के अंदर रेस्टोरेंट है, तो ऑटोमेटिकली इसमें क्या होगा, जीएसटी 18% होगा और विथ इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 56, अच्छा, ए होटल where all rooms are priced below,
सभी रूम का प्राइस बिलो 7,500 है पर डे प्रोवाइड, रेस्टोरेंट भी है और कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि लेस देन ये तो स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस नहीं है, ये स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस नहीं होगा, क्योंकि मैं स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस का डेफिनेशन में बता चुका हूं, ये तो स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस नहीं है, इसके अंदर होटल है, तो इसमें क्या होगा 5% जीएसटी विदाउट आईटीसी, यहां पर जीएसटी 5% होगा विदाउट इनपुट टैक्स क्रेडिट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57, an e-commerce operator like Swiggy, Zomato is liable to pay GST on restaurant services supplied through it। ओके, वो सब रेस्टोरेंट में जाके, स्विगी जोमेटो का काम क्या है, वो रेस्टोरेंट के साथ उनका लिंक है, वहीं से वो फूड कलेक्ट करते हैं, तो वहां पर भी जीएसटी पे करते हैं। विच जीएसटी रेट इज जनरली, तो इज एप्लीकेबल टू द रेस्टोरेंट सर्विस components in this scenario, assuming the restaurant is not a specified premise, is not a specified premise means 5% GST without ITC, input tax credit वहां पर नहीं है, without ITC, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58, what is the new GST rate on coal for thermal power production which was previously taxed at 5%? ओके, व्हाट इज द न्यू जीएसटी रेट ऑन कोल, कोल के ऊपर अभी 18% है। ठीक है, तो कोल के ऊपर अभी 18, व्हाट इज द न्यू जीएसटी रेट ऑन कोल फॉर थर्मल पावर प्रोडक्शन व्हिच वाज, अच्छा थर्मल पावर प्रोडक्शन के लिए कोल के ऊपर टैक्स 5% था, अभी 18% कर दिया गवर्नमेंट, क्योंकि थर्मल पावर से क्या हो रहा है, हमारा जो कोल है वो एग्जॉस्टेड हो रहा है और बाकी पॉल्यूशन बहुत है, क्योंकि उसका जो आस है वो एग्रीकल्चरल लैंड को सीवियरली डैमेज कर रहा है, नहीं कि, तो उसमें तो न्यू जीएसटी रेट कोल के ऊपर 18% कर दिया, क्योंकि पहले थर्मल पावर प्रोडक्शन के लिए जहां पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है बाय यूजिंग द मेन रॉ मटेरियल कोल, वो पहले 5% था, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59, द जीएसटी ऑन हेल्थ केयर एंड लाइफ इंश्योरेंस, ये तो मेड एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अभी जो हेल्थ केयर इंश्योरेंस और जो इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस है आप करोगे तो उसमें जीएसटी नहीं लगेगा, जैसे पीएलआई पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस बहुत पॉपुलर है, इसके ऊपर अभी जीएसटी नहीं लगेगा, पहले आप जीएसटी दे रहे थे, और कोई हेल्थ इंश्योरेंस में पहले जीएसटी दे रहे थे, अभी जीएसटी एग्जेम्प्टेड है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन है, द जीएसटी ऑन ये जो कैसिनोज, बेटिंग, लॉटरीज, ऑनलाइन मनी गेमिंग, ये सब डिमेरिट टैक्स साइन, इसमें एक स्लैब किया डिमेरिट और साइन, ओके, सर्विसेस, ओके, इसमें 40% है लगेगा, ये 40%, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सो माय फ्रेंड्स, एक मेरा जो थ्योरी पार्ट है जीएसटी का उसको देख लीजिए, जीएसटी रिफॉर्म्स के ऊपर अभी जस्ट मैं अपलोड किया था 2 दिन पहले, और जितना भी एमसीक्यू आएगा, जो न्यू कॉन्सेप्ट, ओके, जो न्यू स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस किया है, बहुत कुछ रेक्टिफिकेशन किया है, उसके ऊपर क्या है आपको बढ़िया एक इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, और कोई भी जब आपको क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू के ऊपर, बहुत अच्छे से आप अटेम्प्ट कर सकते हो। वहां पर मैं क्लियरली बताया कि किस किस कमोडिटी के ऊपर, किस किस सर्विस के ऊपर जीएसटी रेट क्या है, अभी जो मेरिट रेट किया 5% की, स्टैंडर्ड रेट किया 18% की, डिमेरिट रेट किया 40%, कहां पर एग्जेम्प्टेड है, पूरा डिटेल्स में बता चुका हूं। एक 1 आवर 57 मिनट्स का वीडियो मेरा थ्योरी रिलेटेड है, और आज मैं 60 क्वेश्चन डिस्कस किया। So my friends, please subscribe my channel, share my channel, like my channel, so that you can get notification for my upcoming videos. आज इतना ही है, थैंक यू और नमस्कार टू ऑल ऑफ यू।